First of all, let me welcome all the participants. So very warm welcome to all of you for joining us on this webinar on the real estate way forward. And let me introduce the panelists to you. So we have with us Mr. Govind Rai, who is founder of a digital agency, well-known digital agency, Insomaniacs, plus plus along with many technology-related innovations he has done. He's been associated with the industry from last 15 years and been running multiple businesses. So please welcome Mr. Govind Rai. I have with us Mr. Vijay Shikirwar. He's taking care of sales and marketing for Guru Krupa developers. So please welcome Mr. Vijay Shikirwar. We have Mr. Sudhesh Pandey with us. He's a banker by profession, and he actively works for providing home loan related and finance related solutions to real estate companies as well as clients. So a warm welcome to all the panelists. Let us begin this. I hope all the participants can hear me loud and clear. Guys, so let us just begin. I've got plenty of questions from the participants who wanted to come on the platform and hear. So one very common question which has come is how you think, how we can sell products, how we can sell homes during this crisis, or say post this crisis. We are already in 2 months kind of a lockdown. So how to stay afloat in the business? So I'll start with Govind first. So please. Thank you, Kashi, and I believe it's a great panel that the team has organized, and I'm pretty sure we will be able to give a good amount of insights to all the attendees, channel partners who have joined in today. So for the question that you have asked, Shashi, to be very honest, we got to first understand what is happening. In between, we thought that, okay, the lockdown is coming to an end, and we are waiting that, okay, the lockdown comes to an end, the coronavirus is going to be gone. But as per the current scenarios, when the medicines are not yet in, there is a possibility that this situation will continue till December, if not, if not any early. So if that's going to happen, the economy cannot be on standstill, but a lot of things are going to change. So for a matter of fact, previously it was all about, previously we used to get leads, we used to call people, our customers, and then we used to align site visits, and then few site visits more and maybe booking. But now the new definition of the whole experience of home buying is definitely going to have the virtual element inbuilt. So what every developer, every broker is going to try to do is to, create an experience on virtual as of now. But that virtual experience that they are trying to create is going to continue even after the lockdown is out. So a customer was going for 15 to 20 site visits previously, for 15, 20 projects or maybe 10 projects. Now is going to go for maybe 5 or 6 or 7. Okay. He will want to filter down his options, mainly on these virtual tools and virtual walkthroughs and virtual interactions itself. So these virtual interactions and usage of technology is definitely going to stay. And by the time, October, November approaches, which could be a Diwali phase as well, this could become a new norm. So right now, the most important element as a first key takeaway from the session that I want to give to the people is you will have to be very sure that, your collaterals or whatever projects that you are working towards, you are really collating it in the best way possible, so that you are able to visualize customers on the face. They are not going to experience the sample floods maybe that easily now. So how you are visualizing each and everything on internet, on the digital experience is going to be of prime importance, and using the technology is also going to be of prime importance. So that would be my bit on this. Maybe more we will be discussing all through down this session. Vijay, maybe you can put some more light from your perspective. So same here. Online will be a new mantra altogether. Going forward, lockdown, we were expecting it to close down, चालू होगा, normalcy start होगी. बट ये नॉर्मलसी अभी भी फिलहाल लगती नहीं है, दूर दूर तक कुछ ऐसा इतना नॉर्मल अपने को अभी ये सिचुएशन मिलने वाली है. So going forward, what you correctly said that कि people have to accumulate all the data in one file. सब जो भी वो प्रमोशन करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी प्रोजेक्ट को जो प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास ऑनलाइन अवेलेबल होनी चाहिए. कस्टमर से ऑनलाइन ही डिस्कशन होगा, ऑनलाइन ही वी हैव टू प्रमोट दैट प्रोजेक्ट. तो जितना ज्यादा उसको विजुअलाइज कराया जा सकता है इस माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से, that is the best thing to happen right now. So what I really feel is real estate is bouncing back, and real
estate has adopted a new ways of sales, and well adapted, and which can be seen by the numbers also. Numbers means जो कि रिपोर्ट्स में अभी दिखाया जा रहा है, इतना माल बेचा, उतना माल बेचा, ये बेच इसलिए पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छे से तैयारी कर ली है. They can visualize, मतलब they can put their product on a online platform जो visualize हो रहा है कस्टमर को, और people can make their decisions. So easy way. अब आगे चल के प्लेटफॉर्म यही रहने वाला है ऑनलाइन, और that is the mantra. I would say new normalcy is a social distancing. Okay. Okay. So let me just bring out something from what Right. you guys have Like just, hello. Okay, I think yeah. Right. so let me just add up to what you guys have mentioned. See, I think as you rightly said, Vijay, social distancing is the way of life now. Now, whether Corona ends or it gets prolonged, because till the time we don't have vaccine, till the time we don't have a mass production of the same, we have to learn to live with it. And by saying that we have to learn to live with it, then a necessity will force us to innovate. So Govind, what's your thought on innovating and coming up with innovation when it comes to real estate per se, sales and marketing? What kind of innovation reality should look up to, the channel partner should look up to, because the kind of business CPs were doing till date was more of a physical. They know the customer, they physically associate with the customer, they take them for a site visit, they show the product, the sample flats. So what kind of innovation you think, because this is the new normal now, we have to learn to live with it. So what's your take on this? No, so from both the perspective, from the developer perspective and from channel partner perspective, I believe the usage of technology जो 10 साल में होने वाला था वो अगले 3 साल में हो जाएगा, right? Whatever evolution that was supposed to be needed. So when I'm saying that technology is going to evolve, it is going to change every function from where we look at it. So right from the way you capture the leads, right? As of now, you have a few mediums. There will be much more mediums coming in. There will be people who will be spending more time on algorithms and giving more options so that we can have more cheaper leads coming in, more proper leads and quality leads coming in. Then with regards to how these leads are being maintained, so every channel partner and developer are going to ask a lot more from their current CRMs. So CRM functions have a certain things coming in, but now they will have to have the functionalities to handle these virtual tools also. Their data also has to be fetched in. So, and not just that, a lot more activities are going to be needed now in terms of how the referrals are going to work, taking place, how a developer was responding and corresponding with channel partners. All of it is going to get automated. That's one part that we are pretty sure is going to evolve. Now, the third element, which is a new possibility that we are looking at, which is a virtual reality, right? The virtual walkthroughs. Correct. Yes. So the current shape that virtual walkthroughs and virtual reality is existing, the biggest question is it? It's the experience that we are already giving is the only thing that we have. So we got to be very sure about it. So far, no one was really taking virtual realities very seriously. Correct. Channel partners, be it developers. Now that the need has arisen, there's going to be so many new updates which is going to come on this platform. I see the possibility that there will be much more developments happening where you will just give the floor plans and within no time the 3D renders will be ready. And the 3D renders will have interior options, customization possibility as well. So that when you are interacting with your customers as a developer or as a channel partner, you can really make them visualize that which wall color, which sofa, what thing is going to come in which way. So this interactive tools are going to be, coming in. Maybe you will have a possibility where, sitting at your home, a customer can actually into the walkthrough can see what is the length of this particular wall, what is the length of this particular room. So all these interactive, informations will be coming, and that's where we believe the future is going to move towards. Okay. One more thing, Govind. I think first of all, the audience would like a little Hindi-English kind of a combination to understand. So would I Sure. request you to? Absolutely. Yeah. So one more thing, Govind, wanted to bring out.
See, we have seen developers using virtual reality in past, but not in a very customized or not in a very interactive way. So how you think, what kind of investment in terms of infrastructure, in terms of backend, in terms of team strength, the channel partner needs to, developer lobby more or less have been using this, but according to you, हमारे channel partner को किस तरह का investment इन सब चीजों में करना चाहिए, so that they can acquire new leads, they are able to stay afloat by doing more and more business? So Shashi, is a very good question. हमारे हिसाब से जो अभी नया जो पैटर्न चल रहा है, और by 2025 जो सबसे ज्यादा पावर जिसके हाथ में होने वाली है वो एक्चुअली डेवलपर से ज्यादा चैनल पार्टनर्स के हाथ में होने वाली है. दैट इज द बिलीफ सिस्टम दैट एक्चुअली वी आर नाउ, हम लोग को जो दिखाई दे रहा है. तो डे बिफोर हम लोग का एमआर के इंटरनेशनल हेड से एक सेमिनार वेबिनार साथ में चल रहा था. तो ही सेड दैट जहां पे भी इवॉल्व मार्केट है, जहां पे भी इवॉल्व डेवलपर्स है, वहां पे 85 to 90% मूवमेंट चैनल पार्टनर्स के साथ होता है. Right, they are contributing to a big success towards any developer. तो आज की डेट में चैनल पार्टनर्स को ये समझना जरूरी है जब दारोमदार उनके हाथ पर आने वाला है, तो गोइंग फॉरवर्ड दे विल हैव, उनको बहुत सारी चीजों में इम्प्रोवाइजेशन करना जरूरी है. तो आज की डेट में जैसे उन लोगों ने एक बेसिक टीम डाल दी है या किसी के साथ फेसबुक पे या गूगल पे लीड्स इकट्ठा कर रहे हैं, गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है कि उनको भी जरूरत पड़ेगी अच्छे स्किल्स के बंदों को साथ में रखने की, जो अच्छी तरह से इन प्लेटफॉर्म को समझ सके, सही रेट पर लीड्स ला सके. और दूसरा, टेक्नोलॉजी को यूज करना बहुत जरूरी पड़ेगा. जब बहुत ही ज्यादा मेहनत चैनल पार्टनर्स को करनी है, काफी ज्यादा ट्रैक्शन हर एक डेवलपर के लिए चैनल पार्टनर्स को लाना है, तो उनका सीआरएम सिस्टम एट द बैक एंड दे विल हैव टू प्रिपेयर दैट वेरी वेल. एट द सेम टाइम जब वो डेवलपर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए कस्टमाइज कोलैटरल और क्या बन सकते हैं, उनके लिए कस्टमाइज रिक्वायरमेंट्स कैसे पैदा किए जा सकते हैं, सो दैट एक इंटीमेसी उनको अपने कस्टमर्स के साथ बनानी पड़ेगी. तो कल को डेफिनेटली ऑल द डेवलपर्स आर गोइंग टू सेल सम डायरेक्ट थिंग्स एज वेल, पर चैनल पार्टनर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा. वर्ड ऑफ माउथ में चैनल पार्टनर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है. इन टर्म्स ऑफ गोइंग थ्रू अ मीडिएटर, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ थिंग वेयर कस्टमर विल फील अ लिटिल बिट ऑफ मोर इंटीमेसी. उसको ज्यादा सतर्कता बरतनी पड़ती है डेवलपर के लिए जब वो एक अच्छा चैनल पार्टनर, कोई डाउट ही नहीं है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग खुद हम लोग रियल एस्टेट एजेंसीज के फॉर्म में काफी टाइम से काम कर रहे थे फॉर डेवलपर्स. Last half year, 1 year, we have started working with a lot of channel partners as well, because धीरे-धीरे all the channel partners we are seeing that they're evolving, they're ready to adopt with the technology and they want more. वो hungry हैं, वो भूखे हैं, उनको और ज्यादा business करना है, और ज्यादा sales करने हैं. And so the basic thing is उनको और अच्छे लोग अपने साथ रखने पड़ेंगे अपने growth के लिए, क्योंकि आज जो 1 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है या 50 लाख का टर्नओवर कर रहा है, पॉसिबिलिटी है वो 2x या 3x अगले 2 से 3 साल में करना शुरू कर देगा, क्योंकि चैनल पार्टनर्स के ऊपर रिलायंस इवन डेवलपर्स का भी काफी बढ़ने वाला है. सो चैनल पार्टनर्स अब ऑनलाइन को किस तरह से यूज करने वाले हैं पहले के कंपैरिजन में, वो बहुत मैटर करेगा इन टर्म्स ऑफ देयर ग्रोथ आल्सो. सो कोई आज 25 लाख पे भी बैठा है, आई कैन प्रॉमिस अगर सही एफर्ट डालेगा तो ये साल के एंड में दे कैन गो फॉर 1 करोड़ 1.5 करोड़ काइंड ऑफ टर्नओवर एज वेल. कोई 10 लाख पे बैठा है, वो 50 लाख कर सकेगा. ये सारी पॉसिबिलिटीज है अगर जिसने भी अपनी टीम फॉर्म किया और टेक्नोलॉजी के साथ adoption fast rakha, and they'll be able to do great in the business. Nice. Vijay, would you like to add something to it, the kind of initiatives developers are doing these days to help support the channel partners, and what kind of innovation channel partners should be doing? Okay. As far as support is concerned, to support developers who are very ready to give support to the channel partners, because 70% business जो channel जो developers का होता था पहले भी, that was through a channel partners only. So channel partners play a very key role into the total sales turnover of any developer. So ये पहले से ही बहुत essential रहे हैं. तो हर कोई हर मुमकिन कोशिश करता ही है उनको हर तरह का सपोर्ट देने का, बीट भी है कोलेटरल सपोर्ट, बीट भी है डिजिटल प्लेटफॉर्म वगैरह, जो कुछ भी दिया जा सकता है. अपनी टीम भी देते हैं वो लोग. नाउ तो यू कैन सी दैट
कि there are plenty of companies who have segregated channel partner sales and their regular sales. तो उन्होंने अलग से एक टीम बनाई है जो चैनल पार्टनर को असिस्ट करती है, रेगुलर बेसिस पे उनके साथ टच में रहती है. आज भी है वो टीम. अब होगा ये कि गोइंग फोर्थ क्या करना चाहिए. आज तक तो ठीक है, इतना चल रहा था. एज राइटली गोविंद सेड दैट कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है. अब ऐसा नहीं होगा. ट्रेडिशनल वे में पहले चैनल पार्टनर्स काम करते थे कि उनका रिलेशन था. पहले जो उनके गुडविल में जो कस्टमर्स थे वो उनको रेफरेंस दे देते थे या वो बातचीत करते थे. उनके रिश्तेदारों में कुछ लोग रहते थे. इस तरीके से ट्रेडिशनल वे था. एक डायरी थी, डायरी में से वो फोन लगाते थे, भाई हो जाता था. कोई इधर चला जाता था देखने के लिए, उधर चला जाता था, रेफरल से बिजनेस मिल जाता था. बट आगे चल के दे हैव टू प्रिपेयर अ प्रॉपर डेटाबेस, प्रॉपर ऑनलाइन मीटिंग्स करना. तो उनको टेक्नोलॉजी पे और पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा. अब उनको रोबो सीआरएम क्रिएट करना पड़ेगा सो दैट दे विल नॉट मिस आउट अ सिंगल लीड विच इज बीन जनरेटेड थ्रू देयर रेफरेंसेस. ये बहुत जरूरी है कि आज के डेट में वो हर लीड को अपने इसमें लॉग इन करें और उसके बाद उसका ट्रैक रखें कि भाई उसने कहाँ तक की इंफॉर्मेशन मुझे पहुंचाई गई है. अब आगे क्या उसको देना है. Is he been informed about the pricing? Is he been informed about the product? Is he been informed about the virtual tour? दिया गया है क्या उसको, अगर उसने और मांगा है तो धीरे धीरे सिस्टमेटिक वे में उसको लेके जाना पड़ेगा. पहले इंक्वायरी जनरेट होगी, इंक्वायरी के बाद उसको वो लोग सेग्रीगेट करके निकालेंगे, भाई इसका बजट ये है, इसको ये एरिया में प्रोडक्ट चाहिए, इस तरीके की इसकी डिमांड है. अब कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो देयर आर फ्यू चेक बॉक्स इंक्लूडेड. मतलब पहले भी उनकी अच्छी खासी एक लिस्ट होती थी कि भाई ये जरूरतें हैं हमें इस घर को, मतलब हमको डिमांड ये है कि हमको स्कूल होना चाहिए, हमारे बाजू में ये होना चाहिए. तो अब उस चेक बॉक्स में फ्यू थिंग्स आर बीन एडेड. तो उसमें से कुछ जो एडिशन हुआ है उनमें मैं अगर लिस्ट डाउन करना चाहूंगा तो ये भी है कि भाई अब उनको ऐसा भी घर चाहिए जो बड़ा हो, जिसमें ऑफिस स्पेस भी है क्या. ये भी एक नया तरीका निकला है. तो चैनल पार्टनर्स को अब उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक नोट क्रिएट करना पड़ेगा, उनको ट्रैक रखना पड़ेगा कि वो किस स्टेज पे है. अब वो दे डोंट वांट टू लूज आउट देयर क्लाइंट्स, तो वो स्टेज पे ट्रैक रखना बहुत जरूरी होगा. प्लस वो सपोर्ट जो बिल्डर से उनको मिलता था, जो वर्चुअल टूर वगैरह जैसा अभी डिस्कशन हमारा हुआ था वर्चुअल टूर को लेके. वर्चुअल टूर इज अ very effective tool in our sales right now, I would say. Post COVID also, I think that will be a best tool to convert any sales. Correct. तो उस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे लोग आगे चल के. और जिसके पास ऑलरेडी रेडी है वो प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है, जिसके पास नहीं रेडी है वो आगे चल के वो बनाने वाला है. उस पे वर्चुअल टूल्स पे इनोवेशन होने वाले हैं, बहुत सारे इनोवेशन होने वाले हैं. आई थिंक वो तो इस तरीके से होगा कि आदमी प्रैक्टिकली एक घर में जाके उस घर को क्या व्यू है क्या नहीं है वो सब चीजें देखने की कोशिश करेगा. एंड पीपल आर गोइंग टू इन्वेस्ट ऑन इट heavily, I'm telling you. Correct. So if I have to summarize it, what Govind and what you have just added. So you are saying that earlier the trend was a client, एक customer, एक project को 4 बार 5 बार visit करता था, 7 times or 8 times probably visit करता था, तो finally make a decision before, you know, and he would have screened मतलब 4-5 projects in the locality physically by doing site visits. And तब वो परचेज करता था कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, कोई एक पर्टिकुलर अपार्टमेंट. Now, if I have to summarize it, what you guys have said, that virtual content or the digital platform will reduce the number of site visits. Customer will be able to filter the selected project, probably 1 or 2, and would like to visit that only 1 or 2 projects, and only for a final closure and discussion. Correct? Agreed. Okay. Now I have with us Mr. Sudesh Pandey also. As I said, he's a banker and from a banking background. So Sudesh जी, ऐसे लॉकडाउन में आपके हिसाब से बैंक ने कुछ नई इनिशिएटिव्स, होम लोन के बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो कि डिसबर्समेंट डिले हो रहा है या कस्टमर्स जो लॉक कर चुका है डिसीजन. सो अभी बैंक के क्या इनिशिएटिव्स है? व्हाट आर द इनिशिएटिव्स टेकन बाय बैंक ऑफ लेट? या So, hello everyone, Sashi, hi. Yeah. So, I mean, as the other panelists said, like Vijay or Govind, I think it's very unfortunate that we have come to this situation in this pandemic. But more or less, it was supposed to happen a little later. I mean, all the things used to come in on online and stuff like that. But now, as it has happened, we are here. And so, like the real estate is taking up the steps in terms of digital marketing or going virtual tours and everything.
although it used to happen earlier, now I think it will happen more. Bank also similarly, we had online sanctions, we had online processing for the loans and disbursements and stuff like that. But now after this pandemic, the banks have taken a very serious call on it. And of course, it was supposed to be future also, because more or less in future, we are going to have similar kind of things wherein the customer would like to be troubled less, Correct. would like to have more of a facilities at their doorstep. So what we have done is there are a lot of banks who have started online sanctions. So there are banks wherein the customer can apply online and get a proper sanction by assessing the credit and by doing the entire paper. It is not only for salaried customers, it is also for self-employed customers. And it is a complete proper sanction. We are doing it. We're doing verifications. We're doing all the necessary checks required. And it's a proper sanction. We're doing it. And also the bank has considered is like, they have kind of in a benefit of the client understanding, even if the document is not complete, the bank is accepting part document also and giving the proper sanction. And once the lockdown opens, we can, process it further. Yeah. So that is how it is. Very well explained. I think एक सबसे बड़ा concern यही था कि हम product shortlist करा लेंगे, customer virtual tour देख के product select कर लेगा, या बाकी तरीकों से digitally we can educate the customer कि this is the best project you can buy. But एक सबसे बड़ा challenge वही होता है the affordability aspect or the loan approval. Loan pay. Yeah. So अगर bank is becoming so flexible these days. That, absolutely. So. Yeah, you're saying something. Continue. No, so I was saying, I mean, as you rightly said, the complete the transaction, of course, there are various tools like the sale is supposed to generate it, then the closure has to happen, and of course, then the loan piece comes because most of the guys goes for the housing loan. Correct. And of course, there was, I think, more or less now, I think e-registration is getting sorted out. I think there is some news wherein the e-registration also should start immediately. Yeah. So the sanction is happening from the bank side, and slowly we are moving towards the disbursement process also. So very soon we will have, as of today, we have a sanction process in place, complete sanction process from multiple banks. And very soon we are also going into, the banks are working out wherein we will be able to disperse the loan also online. Wow, so great. Practically the customer need not visit to the branch, as Vijay rightly said, the social distancing is going to be the new mantra. So we are going to be doing everything online. So the customer will sign the online disbursement form, like what he is filling the application form now online for applying the loan. He will be signing वो पूरा disbursement document भी online ही sign करेगा, and हम online ही उसके सारे document लेके हम disbursement भी online कर देंगे. So that is the future. I think it's a very well, I must appreciate the kind of effort banks are doing these days. Being a panelist myself, were not aware that we are moving towards e-disbursement of loans. It's a very well it's a knowledge for me as well. I think बहुत सारे channel partners को भी थोड़ा सा relief हुआ होगा ये सुन के कि अभी e-disbursement is also a possibility in this country. Yes, it will be very soon. एक important question था जो probably Mr. Shudesh and Mr. Vijay I would like both of you to address. As registration office is closed from past so many weeks, how you see soon the e-registration to go up? Because अगर registration नहीं होगा तो bank loan or disbursement won't happen. So how you see this thing happening, and how soon you see this thing happening? I would like to answer this. Yeah, I would like to answer this. See, e-registration was happening earlier also, but उसका ऐसा था कि there were a quantity of documents to be registered in a day was 50 or 60. किसी के पास है, so he was getting a permission to do a online registration from his office itself. उसको नॉर्म्स को गवर्नमेंट ने अभी थोड़ा और कम करके 20 पे लाया है. 20 डॉक्यूमेंट्स अगर किसी के पास रजिस्ट्रेशन करने के लिए है तो उसको वो परमिशन दी जा रही है. बट आज उस परमिशन को लेना और उसको अमल में लाना तो गवर्नमेंट ऑफिसेस के चक्कर लगाने ही पड़ेंगे किसी ना किसी को. तो ये पेंडेमिक में वो सिचुएशन अभी तक आई नहीं है. गवर्नमेंट इज पुटिंग देयर ऑल एफर्ट टू गेट इट रजिस्ट्रेशन होना चालू हो जाए. ये उनका पहला उनकी कोशिश है. बट दे आर वर्किंग आउट अ वेज. बट
still they are unable to work out anything because the physical document का होना बहुत जरूरी हो रहा है, because you need a physical signature of the customers as well as the builders on it, and document has to be verified because third party अगर registration कर रहा है तो document has to be verified by the government authorities. तो इसका जो ट्रांजिशन होगा कि पहले स्कैन होगा एक लेवल पे, वो जाएगा गवर्नमेंट ऑफिसेज में, गवर्नमेंट ऑफिसेज उसको स्कैन करके फर्दर प्रोसेस करेंगे, जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस पूना में है, जो उनका सर्वर है मेन, वहां तक जाएगा. तो ये जो प्रोसेस है इसको शॉर्ट टाइम करने के लिए वो लोग कोशिश जरूर कर रहे हैं, बट अभी तक कोई ऐसा हल आया नहीं है. बट आई मस्ट एक्नॉलेज दिस कि गवर्नमेंट इज पुटिंग एन एफर्ट टू गेट इट डन ऑन ई रजिस्ट्रेशन. जैसे बाकी के प्रोसेस जैसे ऑनलाइन हो रहे हैं, इस प्रोसेस को भी वो ऑनलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं. दे हैव ओपन्ड अ वेरियस ऑफिसेज इन अ डिफरेंट रीजन आल्सो. बहुत सारे लोगों को प्राइवेटाइजेशन कर दिया था उन्होंने रजिस्ट्रेशन का. बहुत सारे लोगों के पास परमिशन है कि वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बट वहां से उसको ऑनलाइन करना, यानी कि कस्टमर का उस ऑफिस में ना जाना, जरूरत ना पड़े कस्टमर को वहां जाने की, बिल्डर को ना जाने की जरूरत पड़े, ऐसी सुविधा का अभी तक हो नहीं पाया उन लोगों से. दे आर प्रोसेसिंग ऑन इट. So soon, but hopefully soon we will have that process also online. Completely with you on this, Vijay. I think it's a unforeseen circumstances which the entire human race is going through. So we can expect innovation to happen, and we can expect innovation to happen from the grassroots level, which can be, of course, driven by government support and initiatives. Okay, now coming back to a very important question is how you see the demand in real estate. How you see the demand in real estate. So I would like to touch upon two important aspects. So the under construction as a segment and ready to move in as a segment. So Govind, if you can start with. So Shashi, it's a very good question. One thing इसके लिए सबसे पहले मैं समझना जरूरी है कि अभी जो माहौल हुआ है उसके अंदर सबको एक चीज का एहसास हो गया है कि घर से बड़ा कुछ नहीं है. घर जैसा जो एसेट है उससे अच्छा कुछ नहीं है. जो इस महामारी के टाइम पे जो सबसे ज्यादा हम लोग की मदद किया है वो हमारा घर है. इस महामारी का कोई दवा था तो हमारा घर था. तो डेफिनेटली अगले 2 क्वार्टर्स में जहाँ पे इकोनॉमी थोड़ी लिक्विड नहीं रहेगी एंड थोड़ा बहुत सबके जॉब्स पे, सैलरीज पे इम्पैक्ट रहेगा, तो ये मार्केट में अगर 100 कस्टमर थे तो शायद अब 70 रहेंगे या 50 रहेंगे. एक चीज है, मार्केट में कस्टमर्स रहेंगे, लेकिन ये 2 क्वार्टर के बाद या 3 क्वार्टर के बाद जो रियल इम्पैक्ट है उसका, जो इस पूरी महामारी का, वो शो करेगा. एंड जो एक सर्ज दिखना चाहिए था, जो एक पीक दिखना चाहिए था घरों के डिमांड के लिए, वो बिल्कुल दिखेगा. जैसा कि मिस्टर सुधीश ने कहा कि ई लोन डिस्बर्समेंट का फैसिलिटी है, इंटरेस्ट रेट कम कर दिए गए हैं. यूएसए के अंदर अभी जो लेटेस्ट एक नंबर आया था हम लोग के पास, जिसमें ऐसा ऑलरेडी शुरू हो गया है कि वहां पर घरों के रजिस्ट्रेशन के लिए और उसके लिए एक एप्लीकेशन जाती है जिसमें ऑलरेडी 12% इंक्रीमेंट हो चुका है लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर के बीच में. 12% इज अ वेरी बिग नंबर. ये ऑलरेडी दिखा रहा है कि लोगों को समझ में आ गया है, जो रेंट पे रह रहा है उसको समझ में आ गया कि मुझे अपना घर लेना पड़ेगा. जो 1 BHK में उसको समझ में आ जाएगा इधर कि शायद 2 BHK में शिफ्ट करना पड़ेगा, और जो 2 BHK में उसको लगेगा कि यार घर थोड़ा और बड़ा होता तो अच्छा रहता, दोबारा कभी ऐसा हुआ तो हम तैयार रहते हैं, तो 3 BHK में आना पड़ेगा. तो डिमांड इज डेफिनेटली गोइंग टू बी देयर इन अ बिग वे. इस 2 क्वार्टर में थोड़ा मोड़ा ऊपर बिजनेस होगा इन टर्म्स ऑफ लोगों की कैपेसिटीज के हिसाब से, पर इंडिया में बहुत सारा ऐसा तबका है जो जिनके लिए 3 से 4 महीने की सेविंग हमेशा करके रखना उनके घरों के कैश फ्लोज को खराब नहीं करता है. तो हमें ये समझना जरूरी है कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं और लॉट मेनी अदर पीपल, अगर जहां रेट्स वैसे भी 4 साल से रियल एस्टेट में बहुत ऊपर नहीं गए, तो डेफिनेटली जो डिमांड है वो ऊपर जाएगा ही जाएगा. हो सकता है ये 2 क्वार्टर्स में ना दिखे, 3rd क्वार्टर्स में, पर वो रिफ्लेक्ट करेगा. तो वन थिंग इज फॉर श्योर कि डिमांड इज गोइंग टू बी अप डेफिनेटली फ्रॉम वेयर वी सी द रेडी पोजीशन होम्स, या जो घर अगले 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने में डिलीवर हो रहे हैं, उनको बहुत बड़ा फायदा जरूर मिलेगा. क्योंकि आज की डेट में जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, अगर ये इस तरह से ही नवंबर दिसंबर तक माहौल रहा जिसमें कम मूवमेंट्स हैं, घरों में ज्यादा समय बिताना है, तो लोग उन घरों में जाना पसंद करेंगे जो अगले 2021 के मार्च तक मिल सके. तो ये सारे ट्रेंड्स हमें जरूर देखने को मिलेंगे. तो रेडी पोजीशन का डिमांड ज्यादा रहेगा, पर अंडर कंस्ट्रक्शन डेफिनेटली प्राइस एडवांटेज की वजह से उनके मूवमेंट में भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए. डेफिनेटली एज इफ आई हैव टू टेक अ होम, मेरे को घर लेना है, और अगर हम एक सर्वे करेंगे तो रेडी पोजीशन होम का डिमांड जो, या अगले 1 साल में जो रेडी हो रहे हैं उनका डिमांड थोड़ा सा ज्यादा दिखेगा. दैट वुड बी माय टेक. Vijay, if you like to
touch upon? Yeah, I would like to actually तो गोविंद has covered all the aspects to it. कि गोविंद ने सही कहा कि दोनों अलग अलग प्रोडक्ट है, एक RTMI है, एक अंडर कंस्ट्रक्शन. डिमांड तो हमेशा रहने वाली है, डिमांड पहले भी थी और अभी भी है. हाँ, डिमांड में कम ज्यादा होते रहता है, जैसे अगर 100 कस्टमर थे तो 70 होंगे आज के डेट में, राइटली सेड बाय गोविंद. बट हाँ, डिमांड है, इसका प्रूफ बहुत सारी चीजें हैं. पीपल हैव डन एन ऑनलाइन लॉन्चेस आल्सो इन लास्ट फ्यू क्वार्टर. हम देखेंगे लॉकडाउन के बाद में there are 2-3 launches done online, right. And people had a good attraction out there, और लोगों ने अच्छी खासी बुकिंग भी की है. नंबर्स भी लोग शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में, यार मैंने इतना कर लिया, किसने तो 100 करोड़ का धंधा कर लिया, किसने 50 फ्लैट बेच दिए, किसने 100 फ्लैट बेच दिए. इस तरीके का धंधा हो रहा है मार्केट में. So customers are there. I would like to add one more thing. Few days back we were doing webinar for our customers. अपने ग्रुप ऑफ कस्टमर्स थे, उनके साथ में अपन कर रहे थे. तो एक कस्टमर का खरीदने का कारण क्या था कि he just shared that insight कि उसने क्यों खरीदा करके. तो he said कि he was staying on a tenancy, और उसके ओनर ने उसको घर खाली करने के लिए बोल दिया अचानक से. तो he was in a panic. He said कि करेंगे क्या करके, and that is the one more reason he bought that RTMI. तो बोला नहीं यार, ये लॉकडाउन खत्म होगा तो इमीडिएटली मुझे शिफ्ट करना है, मेरे पास पूरा पैसा रेडी पड़ा है, विजय भाई सैंक्शन हो गया, ये हो गया करके. एंड देन द रीजन फॉर हिम वाज टू जस्ट दैट कि उसके ओनर ने बोल दिया उसको घर खाली करना है. तो ही वाज सो पैनिक्ड एट दैट टाइम, और उसको रेडी पोजीशन ही देखना था. सारी चीजें उसने देखी, टूर्स ने देख लिया, उसने बुकिंग अमाउंट दे दिया, लॉकडाउन खत्म होगा और इमीडिएटली ही गोट टू पे अस एंड देन टेक अ पोजीशन आल्सो ऑफ दैट प्रॉपर्टी. तो रीजंस बहुत अलग अलग हैं लोगों के पास आज घर खरीदने के लिए. कुछ लोग तो इसलिए भी घर ढूंढ रहे हैं कि बिकॉज उनका घर पहले छोटा था. सो वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया है, एंड वी डोंट सी दिस इज एंडिंग अप इन सून. लॉकडाउन खत्म भी हो गया तो भी गवर्नमेंट में स्टार्ट दी ऑफिस विद 33% ऑफ प्रेजेंस. बाकी लोग तो घर से ही काम करने वाले हैं. तो घर पे उतनी जगह होना कि वो दे विल गेट अ सेपरेट स्पेस एज एन ऑफिस. IT personals have started working from at home, and I have read on a newspaper also कि few of the companies are deciding कि वो लोग सबको घर से ही काम कराएंगे because productivity घर से काम करने में बढ़ गई है. Because they can ask them to work on a Sundays also now. Right. Normally IT कंपनी में 5 दिन का ये वर्किंग साइकिल होता था, यहाँ पे 7 days वर्किंग हो गया है घर से काम कराने में. तो and people are also happy working from at home. तो लोग इसलिए भी घर ढूंढ रहे हैं कि उनको स्पेस बड़ी चाहिए घर में. There are different reasons why people are buying, and there are different demands altogether. हाँ, डिमांड तो है, वो बिक भी रहा है. और गोविंद राइटली सेड कि जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा उसके बाद ज्यादा अपने को अट्रैक्शन दिखने वाला है इसमें. ये जो लोग खरीद रहे हैं वो पहले देख चुके थे प्रॉपर्टी, या उनका डिसाइड दे वर द विंडो सीटर्स. राइट. अब जो विंडो सीटर्स नहीं थे, जो एक्चुअली में खरीदने निकलेंगे, वो अचानक से निकलेंगे. तो देयर विल बी अ ह्यूज डिमांड एट दैट मोमेंट आल्सो. तो आज 70 बिक रहा होगा तो 130 बिकेगा. देयर विल बी 30% इंक्रीज इन दैट टाइम. So Vijay ji, so what as far as I can understand, मुझे मतलब आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि the moment the lockdown, so मैं एक example देता हूँ. I'll throw an example. So in 2008, when the real estate market hit bottom, मतलब Bombay, let's just focus on Mumbai real estate market. 2008 was a bad phase for business, and we saw that by the year 2010, the price or the demand was way higher than what used to be in 2007. Are we going to experience the same thing now? I mean 2020 में कोरोना क्राइसिस देखा, ये डिमांड वापस से मार्केट ओपन होगा, तो can we expect कि rather than touching another low, it will touch another high? I'll not be surprised, शशि, अगर वो another high touch करने वाला ही है. As per my perception, आप अगर देखोगे तो लोगों ने बहुत रोका हुआ है, उनकी खरीदारी को उन्होंने रोका हुआ है. There is a huge demand for a real estate sector. घरों की डिमांड हमेशा से रही है. It started, ये sluggishness जो स्टार्ट हुई थी, ये जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तब लोगों ने बोला कि अब यार ये बंद होने वाला है. तभी भी लोग 70% लोग खरीदते ही रहे. बहुत सारे लोगों ने रोक रखा है अपना बाइंग डिसीजन. मुझे लगता है ये पेंडेमिक के बाद में जब वो लोग घर से बाहर निकलेंगे तो वो सारे लोग खरीदने वाले हैं, बिकॉज ये 4-5 साइकिल्स ऑलरेडी जा चुकी है जो स्लगिश थी. अब मुझे नहीं लगता कि और कोई साइकिल स्लगिश रहने वाली है. नेक्स्ट क्वार्टर विल बी डेफिनेटली अ बेटर क्वार्टर फॉर रियल एस्टेट सेक्टर, and there is a huge demand for it. I'm telling you, people are locking down during this lockdown period their properties जो उन्होंने देखी नहीं है. That means कितनी बड़ी डिमांड है आप ये सोच सकते हो. तो आने वाले वक्त में there will be a huge demand. I can say that.
Sudesh ji, Also, And people have, yeah, Govind, yeah. continue. Also, I believe विजय वन पॉइंट थिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें समझना जरूरी है, जो अभी नया जनरेशन है। अगर आप नया बाइंग ट्रेंड देखेंगे ना, तो 2010 से 2020 में जो एवरेज बाइंग एज थी कस्टमर्स की, मिस्टर सुधीश इसको सपोर्ट कर पाएंगे, पहले जो 38 का एवरेज एज है वो शिफ्ट होकर 32 तक पहुंच गया है, 33 तक आ गया है यंग ऑडियंस का। जो नया तफ्ता, जो यंग तफ्ता घर खरीद रहा है, नहीं, इसके अंदर एक प्रॉब्लम और हो रही थी कि ये जो नया जनरेशन है उसमें काफी बड़ा एक तबका ऐसा भी था जो असेट लाइट रहना चाहता था। वो कहता था कि हम रेंट पर ले लेंगे क्योंकि हमारा रेंट कम पड़ेगा, ईएमआई का बर्डन क्यों उठाया जाए, घरों को क्यों खरीदा जाए। तो एक तबका ऐसा भी खड़ा हो रहा था। तो 2007 और 2010 का जो आपका योर कंपैरिजन दैट वाज देयर शशि, आई बिलीव 2020 में जो ये महामारी का हम लोग ने जो फेस किया है, उसकी वजह से ये जो तफ्ता था जो असेट लाइट रहना चाहता था, आज उसको भी ये रियलाइजेशन हो गया है कि रेंट पे रहना जिंदगी भर शायद सही चीज ना भी हो, खुद का होना भी जरूरी है। तो जो नया जनरेशन जिसके पास आज बाइंग पावर है, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी के वजह, काफी यंग ऑडियंस है जो लोग आज की डेट में उनकी सैलरीज बढ़ रही हैं, अच्छी स्पीड पे बढ़ रही हैं, इसीलिए हमने ये चेंज देखा है। ये जो चेंज है बाइंग पैटर्न का, वो टेक्नोलॉजी की वजह से आया। जो नए यंग जनरेशन के पास अर्ली एज में पैसा आ रहा है एंटरटेनमेंट की वजह से। आज कितने मलाड में, अंधेरी में हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के यंग लड़के घर ले रहे हैं, पर काफी उसमें से ज्यादा लोग घरों का जो एक तो ओवरऑल कंजम्पशन का पैटर्न था, ओवरऑल जो ओन करने का जो प्राइड था, पहला घर केवल एक प्राइड था, ये फेज दोबारा याद दिला दिया है कि घर एक नेसेसिटी भी है, और एक नेसेसिटी पहले है, प्राइड शायद बाद में हो। तो ये सारे जो पैटर्न्स हैं फॉर श्योर ये एक हिंट देते हैं कि 2021 का अगर ये जो माहौल हमारा एक बार सुधरता है इकोनॉमी के फॉर्म में, जो सबसे बड़ा जो डिमांड होगा, आप गाड़ी ना खरीदें, कुछ और ना खरीदें, गाड़ी के लिए ओला उबर है, पर घर के लिए घर ही है। रेंट एक बेसिक ऑप्शन हो सकता था, पर आपके पास जो एसेट का जो बेनिफिट होता है अपने घर के फॉर्म में, जो अप्रिसिएशन के पॉसिबिलिटीज है, वो और कोई एसेट नहीं दे सकता है। तो ये एक और बार एस्टैब्लिश हो गया है। बीच में म्यूचुअल फंड आया, म्यूचुअल फंड ने किया, पर आज के डेट में हम सबको पता है ऐसे क्राइसिस के बीच में क्या हुआ। तो म्यूचुअल फंड सही है, बोला जा रहा था, बोला जा रहा है, बिल्कुल होगा, सही होगा, बट रियल एस्टेट का जो एक मेंटालिटी चेंज हो रही थी लोगों की, नाउ उनको दोबारा एक रिमाइंडर मिल गया दिस एपिडेमिक दैट घर जैसा कुछ नहीं है। सो आई एम प्रीटी श्योर द कंजम्पशन विल गो वेरी हाई। आई एम प्रीटी श्योर द डिमांड विल आल्सो चेंज। वन थिंग जो हमें एज अ डेवलपर और ब्रोकर समझना पड़ेगा वो ये है कि शायद जो छोटे घरों की डिमांड हो रही थी बीच में, हम लोग एक डिस्कशन हमेशा करते हैं कि 800 स्क्वायर फीट नो मोर वाज अ न्यू नॉर्म, राइट? 650 वाज अ न्यू नॉर्म। सो गोइंग फॉरवर्ड व्हाट विल बी द न्यू नॉर्म? दैट डायनामिक्स आल्सो विल चेंज। तो नया शायद दोबारा लोग बड़े घर को पसंद करेंगे। तो ये सारी चीजें देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आने वाले। I would like to add one more thing to this कि देखिए, अगर जो इन्वेस्टमेंट का अगर रियल एसेट्स में जाएंगे, एसेट्स क्लास को अगर हम देखते हैं तो शेयर बाजार ने कैसा परफॉर्म किया है अभी सबने देख लिया है। पीपल हु हैव इन्वेस्टेड ऑन अ म्यूचुअल फंड, पीपल हु हैव इन्वेस्टेड ऑन अ लिक्विड कैश, इक्विटी वगैरह सब में जो डाला हुआ था पैसा, जो भी सबक उनको वहां से मिला है, तो पीपल वांटेड टू री इन्वेस्ट इनटू रियल एस्टेट, बिकॉज रियल एस्टेट पहले भी सही था, अभी भी सही है और आगे भी सही रहने वाला है। So this is one more thing, and plus home loan rates are getting reduced. Government is putting efforts to it. तो ये भी एक सिनेरियो होगा कि भाई घर लेना सस्ता पड़ जाएगा। Vijay, in fact, so government is putting that in. So Vijay bhai, even I would like to support with the same thing what you're saying is home buying was always very important to support with the rate of interest, the way the rates are going on. As you rightly said, no sector is doing well, like mutual fund is not doing great, share market is going down, everything is going haywire. And of course with this pandemic people wants to have more space and other more a better home for themselves, and the best is the government initiative to lower the rate of interest today, like what Shashi was saying initially कि 2008 में जो हमने rates दिखे हैं home loan के rates, that was about 11%, 12%. We have gone up to 13%, we came down to 9%. Before this pandemic also we were operating about 9%, 9.5%. Today we are talking about 7.25% as the rate of interest. So this particular thing is going to make a huge impact on the salaried customer. Like the person who used to earn, or rather who earns a small amount of saving money also,
would like to go for a housing loan, because this is something. And of course, now new norm again, we intend, or rather we foresee that हमें लग रहा है कि rate of interest again थोड़ा सा we are expecting that God further. She's thinking that that we will be 6.5 or 7% rate of interest scenario. So I think that will be a great. I mean, this we are talking about 2004 and 5, when the rate used to be about 6.5 or 6.75%. And अगर आप उसको टच करें तो आप देखेंगे कि यूएस का रेट और हमारे कन्वर्जन रेट में देन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रह जाएगा. सो डेफिनेटली आई सपोर्ट दिस दैट future is definitely going to be home buying. Lot of people will be buying, and that is also give you a data kind of thing. I've been talking with a lot of bankers when they started online, and nobody has expected that the kind of inflow they will get. So yesterday I was talking to a very senior banker of a bank. So they said that they launched the e-sanction just about 10 days back, and they are getting about 250 files daily, from Bombay. So Wow. that was the number he was talking. So I'm saying, my view is that someone who's, if they are generating about 250 files in a day, so either the customer has just shortlisted the property, or even if it has not, then at least he's going and applying for the loan and getting his loan sanction. A, because the rates has gone down. B, like what Govind said, everybody wants to move into a bigger example, which is there, and it is not with one bank. Every bank is doing fair amount of work in terms of they are getting a lot of support. Response from the e-sanctions. So that shows that the lockdown opens, they can immediately close the transaction. So definitely reducing the rate of initiative taken by the government will definitely add a lot of booster to the entire scenario. Yeah. Mhm. They are ready. They are getting ready. Yeah. Okay. Absolutely. Yes. Of course. So, see, Govind has touched upon an aspect that ready to move in products, or the projects which are nearing possession, immediate within say a 6 months to 8 months timeline. This section is going to get a demand, and there will be there will be a definite increase in demand for product which are ready and for product which are nearing possession. Now, how do you see the under construction as a segment? Will the like for the projects which are having 3 to 4 years kind of a delivery timeline, how would you see the demand there? Will those projects will get delayed further? I mean, what's your assessment on it? So if we can have the panelists on this. Hello. So from my end, it's clear that every product has their own consumers. सब हर एक प्रोडक्ट का एक कंज्यूमर सेट है. आज जिसके पास ये परचेजिंग पावर है, वो रेडी पोजीशन को खरीद सकेगा और खरीदेगा. पर जिसने जो अभी केवल रेडी हो रहा था, जो बायर अभी पूरी तरह से तैयार नहीं था घर के लिए, वो डेफिनेट है कि अब वो सोचेगा उसके बारे में. तो वो अपने पेमेंट प्लान्स और अपने परचेजिंग पावर के मुताबिक अपने लिए प्लानिंग करेगा. तो डेफिनेटली एज आई सेड कि एक सर्च, जिनके पास भी तैयारी हो रखी है, जिनके पास भी फंड्स हैं, पैसे हैं, वो रेडी टू मूव इन के लिए मूव करेंगे. पर जिनको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग जिनके लिए जरूरी है, वो रेडी अंडर कंस्ट्रक्शन घरों की तरफ मूव करेंगे. सो I do not think there's going to be a major difference and shift. जो पहले भी ऐसा होता आ रहा था. Just the difference is, जो रेडी पोजीशन वाला बंदा तैयार बैठा था कि आज मैं 1.5 करोड़ का बजट ले रहा हूँ, थोड़ा और इकट्ठा करके 2 करोड़ का बजट का घर ले सकता हूँ, वो शायद बोलेगा कि चलो देखा जाएगा, अभी के लिए एसेट लॉक कर देते हैं, अपनी फैमिली को सिक्योर कर लेते हैं. दैट काइंड ऑफ डिसीजन विल हैपन. जो बंदा अभी तैयारी कर रहा था कि 1.5 करोड़ का घर लेना है, पर अभी मैं तैयारी में नहीं हूँ, मुझे मेरा सैलरी थोड़ा और बढ़ जाए, कुछ डायनामिक्स और चेंज हो जाए, थोड़े और डाउन पेमेंट के लिए पैसा बना लूं, वो अंडर कंस्ट्रक्शन के हिसाब से अभी भी तैयारी करेगा और वैसा ही मूव करेगा. बट एज आई सेड, डेफिनेटली अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स तैयार हो रहे हैं, उनके लिए तो बिल्कुल जो तैयारी हो रही है, चल रही है. पर माय बिगेस्ट कंसर्न इज गोइंग टू बी जो प्रोजेक्ट अभी प्लानिंग स्टेजेस पे हैं, उनकी ये प्लानिंग किस तरह से की जाएगी. जो घर छोटे बनाए जा रहे थे मुंबई में, क्या उसके अंदर बड़े घरों की डिमांड बढ़ेगी. तो ये एक इंटरेस्टिंग फेज है. बाकी जो क्वेश्चन शशि आपने पूछा, which is about under construction, as I said, there's customer for all of it. Not everyone is ready with their funds.
तो जिनके पास नहीं है वो अंडर कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, स्लो पेमेंट्स के हिसाब से उन सब स्कीम्स में जाएंगे. डिमांड बनी रहेगी फॉर श्योर. Vijay, if you like to touch upon. एग्री टू इट. सबका एक कस्टमर बेस है जो अंडर कंस्ट्रक्शन लेना चाहते हैं. जो इमीडिएटली बाई नहीं करना चाहते हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन में ही खरीदेंगे, और जिनके पास इमीडिएटली जरूरत है घर की वो आरटीएमआई में खरीदेंगे. देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर आरटीएमआई ऑलवेज. आरटीएमआई की डिमांड ज्यादा हमेशा से रही है, तो वो हमेशा से रहने वाली है, इस समय भी रहने वाली है, आगे भी चल के रहने वाली है. Because there is no risk involved into it. People who wanted to buy a risk-free purchase, who wanted to do a risk-free purchase right now in this pandemic also, is the RTMI will be a best solution for them. अब RTMI के साथ होता भी है कि भाई वो प्रोडक्ट देख लेते हैं और देख के पसंद कर लेते हैं. मतलब जैसे अगर हम वर्चुअल टूर पे भी दिखाना चाहें या जो प्रोडक्ट रेडी है उनको कोई रिस्क नहीं है उसमें. अंडर कंस्ट्रक्शन के साथ आज के डेट में फंडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, जो मैं देखता हूँ कि आगे चल के उनको लोन रेट जो होगा, उनका लोन क्या भाव से मिलने वाला है, बिकॉज दैट विल बिकम अनसिक्योर्ड लोन, बिकॉज वो एंडिंग पीरियड का टाइम रहेगा या पहले से उन्होंने परचेज की हुई है. एक्चुअली तो रियल एस्टेट इज गोइंग थ्रू अ बैड फेज फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम. अंडर कंस्ट्रक्शन अगर आप देखोगे तो 70% ऑफ प्रॉपर्टीज इन मुंबई राइट नाउ आर डिलेड. 30% ही है जो टाइम पे चल रहा है, 70% तो डिलेड है ही है. अब ये सिचुएशन की वजह से अगर कोई कस्टमर जो पैसा नहीं दे पा रहे हैं या जो उनके पास बुकिंग हुई थी वो पैसे नहीं दे पा रहे हैं, तो दिस विल गेट फर्दर डिलेड, बिकॉज बैंक में डिसबर्समेंट रोका हुआ है 3 महीने से. अब जो डिसबर्समेंट रोका हुआ है, लेबर का प्रॉब्लम चालू हो जाएगा, बिकॉज लेबर हैव ऑलरेडी ट्रांजिटेड. सब लोग चले गए हैं, जो जो जगह पे जाना था वहां चले गए हैं, बिकॉज दीज लेबर कम्स फ्रॉम आउट स्टेट, नॉट फ्रॉम महाराष्ट्र इटसेल्फ. तो और इसमें 90% लेबर बाहर का है. तो लेबर का प्रॉब्लम प्लस मटेरियल का प्रॉब्लम प्लस फंडिंग का प्रॉब्लम, ये कुछ है जो इश्यूज गवर्नमेंट इज टैकलिंग. लोग भी बात कर रहे हैं. आई एम अटेंडिंग अ फ्यू वेबिनार्स आल्सो. हर कोई ये सवाल उठाता है, हर कोई ये सवाल की जवाब देने की कोशिश करता है. गवर्नमेंट इज आल्सो टेकिंग एन इनिशिएटिव कि कैसे उसको टैकल किया जाएगा आने वाले वक्त में. बट हैविंग सेड दैट, आरटीएमआई में ये सारे प्रॉब्लम्स आपको है नहीं, तो आरटीएमआई का डिमांड हमेशा ही हाई रहने वाला ही है उसको, क्योंकि वो रिस्क फ्री है. इमीडिएटली आपने पैसा दिया, आपने खरीद लिया उसको, तो वो एक सिचुएशन बनी रहने वाली है. बट हाँ, अंडर कंस्ट्रक्शन में कुछ लोगों ने ऐसी भी कुछ स्कीम्स चला रखी हैं कि भाई आपको आगे चल के आपका जो ईएमआई होगा, ये सबवेंशन वगैरह ऐसे चला रखे हैं कुछ लोगों ने. उन्होंने ये कोशिश की है कि भाई आने वाले वक्त में उसके ऊपर बर्डन नहीं आए खरीदते वक्त. बट किसी ने 100% दिया हुआ है, किसी ने कुछ टाइम तक के लिए दिया हुआ है, ऐसे भी हैं बहुत सारे लोग. बट हैविंग सेड दैट कि पैसा तो उनको वापस किया जा रहा है कस्टमर को, तो बिल्डर के पास पैसा कैसे आने वाला है बनाने के लिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. ये तो स्कीम्स चला देने से ठीक है, आपने कस्टमर पार्ट हैंडल कर लिया कि भाई आपके पास बुकिंग आनी चाहिए, बट आपके पास पैसा कहाँ से आएगा वो बनाने के लिए. सो इफ यू आर फाउंड इनफ, यू हैव मनी टू कंस्ट्रक्ट इट विदाउट टेकिंग अ मनी फ्रॉम अ कस्टमर, देन तो इट इज ओके, ठीक है, आप बना सकते हो करके. बट इट इज हार्डली, मतलब मेरे ख्याल से 1% भी बिल्डर ऐसे नहीं होंगे मुंबई में जो अपनी तरफ से खत्म करेंगे काम को. Right. So I think we have covered the most of the aspect on the demand side. Now, one more important question, because it's a learning. We all have learned while locked in our houses. Rather, what kind of demand you see for say a township project, which is like having all the amenities and open spaces, lifestyle things embedded into it, vis-a-vis a standalone tower. Because अभी हम 24/7 अपने घर में पिछले 7-8 हफ्तों से, प्रॉब्ली आगे जाने वाले टाइम में भी ये होम स्टेइंग और ये सोशल डिस्टेंसिंग विल बी अ पार्ट ऑफ लाइफ. So how you see which a demand of say a township over a standalone building, say a project with 1 building or 2 building over a project which is having say 10 plus kind of a building with lot of amenities. So people have experienced in this during this lockdown. Decongestion is again one more mantra. और congested जगह पे नहीं रहना है. तो डिमांड इस तरीके के प्रोडक्ट की जहाँ पे यू हैव लॉट मोर ओपन स्पेसेस विद इन दी कॉम्प्लेक्स, यू हैव ऑल द फैसिलिटीज. बिकॉज आज किराना शॉप पे जाना या रोजमर्रा की चीजों का जुगाड़ कर पाना ही बहुत मुश्किल हो रहा है. Right. So complexes where you have all these kind of facilities, where you have a open space also, you can roam down, मतलब घर से नीचे उतरा जा सकता है, ऐसी भी जगह होना जरूरी है. स्टैंड अलोन बिल्डिंग्स में ज्यादा करके ये सारी फैसिलिटीज होती नहीं थी.
तो आज की सिचुएशन को देखते हुए, आने वाले वक्त को देखते हुए, आई ऑलवेज फील दैट कि पीपल विल हैव दैट काइंड ऑफ प्रेफरेंस कि भाई ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स लेते हैं जहाँ पे ओपन स्पेस ज्यादा हो, जहाँ पे कॉर्नर्स हो, जहाँ पे बैठा जा सके या घूमा जा सके नीचे, तो और फैसिलिटीज हो जिनका यूटिलाइजेशन कर सके वो लोग उस कॉम्प्लेक्स में रहते हुए, बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। जैसे जिम है आज वो बंद हो गया, कि कॉम्प्लेक्स के जिम्स कैन बी स्टार्टेड, मतलब वो अभी भी चालू रह सकते हैं अगर कोई भी नहीं है वो सिचुएशन में, कोई बाहर नहीं जाता है, कोई अंदर नहीं आता है, तो वो हाइजीन रख के प्रॉपर दे कैन स्टार्टेड इमीडिएटली। बट बाहर के जिम्स आज भी चालू नहीं होंगे। जिस कॉम्प्लेक्स में जिम नहीं होगा वो आदमी बाहर नहीं जा सकेगा, बाहर के जिम्स बंद होंगे। क्लब हाउस का यूटिलाइजेशन प्लस गार्डन्स, ओपन गार्डन वगैरह जो होते हैं ये भी बंद रहने वाले हैं, आने वाले वक्त में भी बंद रहने वाले हैं। शायद गवर्नमेंट इनको भी कोशिश करेगी कि ये जहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो सके ऐसी सब जगह को वो लोग बंद करने की कोशिश करेंगे। सो सोशल डिस्टेंसिंग विल बी अ मंत्रा। तो ओपन स्पेस वाला प्रोडक्ट हमेशा वैल्यू में रहने वाला है आगे चलकर भी। जो लोग पहले ऐसा कहते थे यार हम तो घर में हार्डली रहते हैं यार, हमको क्या करना है, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स आप बना रहे हो, हमको तो चलेगा, हमारी बिल्डिंग में हमको तो आते ही हम रात में रहने के लिए। आज वो सिचुएशन नहीं है। आज सीन बदल गया है। आज पूरा दिन रहना ही घर में ही है। तो उस तरीके के लोग दे विल चेंज देयर माइंड, so they will shift, there will be a shift of mind for those people also. And so there will be a huge demand for complexes which will have open spaces और buildings थोड़ी दूर दूर हैं जहाँ पर amenities हैं, तो amenities वाला complex कोई भी पसंद करेगा। Govind, if you like to add something to it. Yeah, I believe Shashi, विजय ने जो points के almost covered हैं, जो main aspect हमें समझना चाहिए था कि पहले 50 कस्टमर अगर टाउनशिप को पसंद कर रहे थे और 50 स्टैंड अलोन को कर रहे थे, तो ऑलरेडी लास्ट फ्यू इयर्स में हम लोग ट्रेंड देख रहे थे कि टाउनशिप या प्लान या अमेनिटीज के साथ जो जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी तरफ ट्रैक्शन ऑलरेडी लोगों का बढ़ रहा था। लोग प्रीमियम देने के लिए भी तैयार थे। और ये जो माहौल के थ्रू जिसके थ्रू हम अभी गुजर रहे हैं, एक चीज सबके दिमाग में क्लियर हो गई है कि उनको चाहिए एक ऐसा स्पेस हो जहाँ पे शाम को अगर कल को टहलने जाना पड़े या सुबह का मॉर्निंग वॉक लेना जाना पड़े तो एक ताजी हवा में घूम तो सकेंगे, सड़कों पे नहीं घूमना पड़े, कॉमन प्राइवेट पब्लिक सड़क पे हमें टहलना ना पड़े, बच्चों के साथ नीचे जाना है, थोड़ी देर खेलना है, तो एक जगह होनी चाहिए घर के बाहर। घर मुंबई के घर में इतनी स्पेसेस नहीं है कि आप बच्चों के साथ टोटल लॉकडाउन में रह सकते हैं। कल का फ्यूचर हमें नहीं पता है कि इस तरह की महामारी दोबारा 5 साल में या 10 साल में कब आती है। तो लोग प्रिपेयर होना जरूर चाहेंगे कि उनके पास एक ऐसा प्रोस्पेक्ट रहे कि कुछ नहीं हुआ, अगर हम बाहर ना जा सके तो एटलीस्ट सोसाइटी में कॉम्प्लेक्स के अंदर अपने बच्चों के साथ आधा एक घंटा खेल के उनको एक रियल बचपन क्या है, रियल जिंदगी क्या है, उसको हम एक बार उनसे रूबरू करा सके। क्योंकि जो नया जनरेशन आ रहा है उनके लिए तो एक बहुत ही अलग ही चीज है, कहाँ पर वो अपने माँ बाप को या पेरेंट्स को, फादर्स को, मदर्स को वीकेंड्स पे ज्यादा देखा करते थे। नाउ दे आर लुकिंग एट देम ऑन 24/7 इन देयर ओन हाउस। right and now when that is happening, it is very important कि जो भी बॉन्डिंग हो रही है परिवार के बीच में वो केवल घरों की चार दीवारी के बाहर भी थोड़ी बहुत कंटिन्यू हो सके, जिससे मेमोरीज और बढ़ सके। तो आई ऑलवेज से कि घरों का जब हम प्लानिंग भी करते हैं या जब हमें मार्केट करना होता है वो मेमोरीज के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जितना ज्यादा स्पेस उतनी ज्यादा मेमोरीज, जितना ज्यादा घर के कोने या सोसाइटी के कोने उतनी ज्यादा मेमोरीज। ये मेमोरीज ही बच्चे और हम लेकर आगे बढ़ते हैं। जो घरों का जो रोल रहता है वो सबसे ज्यादा यही रहता है कि चाहे स्कूल हो या हमारा कॉलेज हो, वो हमारे मेमोरीज कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में रहते हैं। पर आपका जो घर है जिसमें आप बड़े हैं, जिसमें पढ़े हैं, वही मेमोरीज आपको बनाती है। So I believe I look at it from that perspective. Every person who's making a decision today is for their family eventually, right? And eventually what they might not remember, जो उनको शायद ध्यान ना हो, पर वो actually यही है कि वो जितनी ज्यादा अच्छी मेमोरीज अपने बच्चों को दे सकें, सहूलियत दे सकें। सारे इंडिया में जो माँ बाप हैं उसी के लिए मेहनत करते हैं, उसी के लिए जद्दोजहद करते हैं। तो आई बिलीव डेफिनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसका जो एक अटेंशन स्पैन है या इसके ऊपर जो इसकी जो महत्वपूर्णता है वो लोग समझेंगे। और जो प्लान प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर अमेनिटीज हैं, पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे राशन की दुकानें और कुछ ग्रोसरी स्टोर्स या सुपरमार्केट्स हो, उनका डेफिनेटली एक ट्रेंड बढ़ेगा and definitely we'll see more traction there. Correct. Sudesh, you would like to touch upon this? So I think Vijay and Govind has rightly said that standalone versus the complex. Definitely the complex I would also advocate, because of the simple thing, like we don't know, I mean, as when this kind of scenario again pops up, or rather even if it is not, then at least living in a
building, definitely, living in a in a big complex, always better that you have better facilities, you can spend time with your families and those stuff. So I think it is always better, and always everybody looks for the better amenities in terms of that. So that is definitely open spaces and all other facilities makes more importance. Yeah. सी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो जी हमारे वेबिनार में जो जितने सारे चैनल पार्टनर्स अभी एसोसिएट जी हैं, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आ रहा है कि जी व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स चैनल पार्टनर शुड सेलेक्ट एंड मार्केट, ब्रोकरेज का क्या ट्रेंड रहने वाला है. सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद विजय फर्स्ट. सो विजय, आपके हिसाब से चैनल पार्टनर कैसे प्रोजेक्ट मार्केट करना चाहिए, और उनका ब्रोकरेज का जो इनकम सोर्स है उसको वो कैसे अफलोट रख सकते हैं, प्लीज इफ यू कैन. सी ट्रेडिशनल वे तो यही था कि ब्रोकर जो एरिया में है वो एरिया का प्रोडक्ट पिच करता है. ये तो एकदम ट्रेंडी है कि वो जिस एरिया में उसकी दुकान होगी या जिस एरिया में वो धंधा करता है उस एरिया के तो प्रोजेक्ट को पिच करता ही है. व्हाट ही इज टू ऐड ऑन अर्लियर कि भाई कोई उसके पास आ जाता था सामने से कि भाई ये भी कर दो, तो वो भी कोशिश करता था कि भाई मेरा ये डेटा है, आप ये ले लो. बट अब गोइंग फॉरवर्ड लिटिल कॉशियस अबाउट पिचिंग द प्रॉपर्टी, बिकॉज बहुत कुछ ऑनलाइन ही रहने वाला है, बहुत कुछ ऑनलाइन ही बताया जाने वाला है. अगर उनको अपना बिजनेस बेस बढ़ाना है, they have to go digital, little bit more informative. खाली डिपेंडेंट उनको बिल्डर के पार्ट पे नहीं रहना पड़ेगा कि भाई मैं लीड दे देता हूँ तुम देख लो करके. अब उनको ये करना पड़ेगा कि दे हैव टू नर्चर देयर लीड्स इटसेल्फ, कि पहले उसको शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा, एक प्रोजेक्ट की उसको लाना पड़ेगा, एक आंख में लाना पड़ेगा कि भाई ही नीड्स दिस पर्टिकुलर, इसकी डिमांड ये चीज की है. फिर उस प्रोजेक्ट को ले जाके उसको बताना है कि भाई चलिए अब नाउ सिंस वी हैव शॉर्टलिस्टेड दिस वन, एंड देन फिर उसको आगे बढ़ सकते हैं अपन उसकी सेल पे. इसके अलावा भी जो उनको करना पड़ेगा कि ध्यान रखना पड़ेगा कि वो क्या स्टेज पे है आज के डेट में कंस्ट्रक्शन. एकदम ही निश स्टेज पे है तो कंप्लीशन कब होने वाला है, बिकॉज क्या होगा कि ये डेटा अभी जो होगा रेफरल से भी बिजनेस बहुत ज्यादा होगा, एक दूसरे के बातचीत से, वर्ड ऑफ माउथ से भी बहुत सारा बिजनेस होने वाला है. So if customer is happy and so he will definitely refer to them on next client. डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वो जितनी भी लीड जनरेट कर सकते थे उससे ज्यादा लीड जनरेट होगी बाय वर्ड ऑफ माउथ. आई कैन टेल यू दैट बिकॉज आई एम सीइंग इट. इट इज बाय वर्ड ऑफ माउथ वी आर गेटिंग अ मोर लीड एज कंपेयर्ड टू एनी अदर प्लेटफॉर्म. तो रेफरल क्लाइंट्स अचानक से बड़े हैं अपने, तो रेफरल क्लाइंट का ध्यान रखते हुए उनको पहले खुद ही दे हैव टू डू अ लिटिल इन्वेस्टिगेशन अबाउट द प्रोजेक्ट कि भाई ये प्रोजेक्ट कब बनने वाला है, कब शुरू हुआ, कौन बना रहा है, और उसमें फैसिलिटीज जो बताई जा रही हैं वो कहाँ कहाँ आ रही हैं, कैसी हैं, स्क्वायर फीट एरियाज उसका जानना, वो छोटी छोटी बातों में भी घुस के उनको जानकारी लेनी पड़ेगी. एंड दे हैव टू बी लिटिल सिक्योर्ड अबाउट डूइंग दैट डील्स आल्सो. प्लस जो वो डील कर रहे हैं उसके बदले में उनको उनका ब्रोकरेज इमीडिएटली कितने दिनों में मिलने वाला है, दैट इज ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज कोई भी बिजनेस इसलिए करता है कि उसको उसका रिटर्न मिले. Yes, तो correct. रिटर्न कितने दिनों में मिलने वाला है और कितना मिलने वाला है. Yeah, that is also more important. So on the coming back to on the brokerage part, see, channel partner being a small business entities, means I'm not commenting on the say the top 10% of the pie who is doing say 90% of the business in the real estate market. I'm commenting on the 90% of the pie who is probably doing 10% of the volume, but they are the ones who are everywhere, who are spread across the geographies. So brokerages being the main revenue stream for them, how you can see developers trying to monetize the efforts of these brokers going forward? ऑब्वियसली जो स्टैंडर्ड जो चल रहा है वो तो ब्रोकरेज उनको मिलती है, हर जगह पे ब्रोकरेज का एक साइकिल है. जैसे आई विल टॉक अबाउट माई सेल्फ ओनली फॉर गुरु कृपा. व्हेन आई एम टेलिंग माई सेल्फ इट विल बी गुरु कृपा में ऑलरेडी एक अपना मरीना इंक्लूज को लेके एक स्कीम चल रहा था जिसमें हमने 2.5 से अपना लेटर चालू किया हुआ था. एवरी डील दे यूज्ड टू गेट 2.5% ऑफ ब्रोकरेज, जिसमें हमने लॉकडाउन पीरियड में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उनको और थोड़ा बढ़ावा देने के लिए हमने ये किया था कि 0.25% हमने और इंक्रीज कर दिया था एवरी डील. जैसे उसमें ऐसा था पहले साइकिल में कि 2.5% की ब्रोकरेज मिलने वाली थी पहली डील पे, दूसरी डील पे हर डील पे उनको 0.25% इंक्रीज हो रहा था. तो हमने ये किया था, हमने क्रिएटिव बनाया और उसमें हमने सब चैनल पार्टनर्स को बोला कि इंस्टेड ऑफ इट विल स्टार्ट फ्रॉम 2.75 नाउ,
So every deal will attract them more to 0.25% brokerage more compared to the earlier scenario. I know. Just to motivate them online session पे जाके कि भाई पहले वाला ही हमने रखा है, लेकिन हमने उसमें 0.25% उनको additional benefit दिया है. Correct. With every deal. Correct. Right. Thanks, Vijay, on this. Govind, I have a question for you. So, what are the challenges I know the real estate brands are facing these days to especially market the product? So, we have heard earlier that कुछ launches हुए हैं lockdown में, virtually launches हुए. We have heard that a few of the players have done remarkable business in the market. So along with this, what are the challenges you see coming up during this time for which brands are especially facing these days? So Shashi, so I will do one thing. I will be while talking about it, I will also touch base a little about जो आपने पहले जो question पूछा था channel partners. थोड़ा मेरे पास कुछ वहाँ पे भी है address करने के लिए. तो पहले जो आपने भी क्वेश्चन पूछा है उसमें शशि माय आंसर वुड बी दैट सबसे बड़ा जो चैलेंज है डेवलपर्स को अभी के डेट में, तो हमारे ए ग्रेड डेवलपर्स हैं, बी ग्रेड डेवलपर्स हैं, यू नो सबसे बड़ा चैलेंज है जो भी प्रोजेक्ट्स के डॉक्यूमेंटेशन या कोलैटरल्स रेडी नहीं थे, राइट, वो प्रोजेक्ट्स को बहुत बड़ा अभी प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि उन्होंने कोलैटरल्स पे ध्यान नहीं दिया था पहले, और एक वेबसाइट और कुछ रेंडर्स के थ्रू दे थॉट की काम हो जाएगा, पर अभी की डेट में उससे काम नहीं हो पा रहा है. जो उनको और मटेरियल चाहिए था, उनको ड्रोन शूट्स हुए या 360 डिग्री शूट्स हुए, वो अभी नहीं थे, तो उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहां पर आ रहा है. और दूसरा ये है कि जो टीम अभी कस्टमर्स के साथ फेस टू फेस बात करती थी, मिलकर बात करती थी, अब वो वर्क फ्रॉम होम से अपने आप इंटरेक्शन कर रही है. तो टेक्नोलॉजी कोई इनके पास रेडी नहीं थी जिससे वो ट्रैक कर सके रियल टाइम में कि मेरा कन्वर्जन कितना स्मार्ट हो रहा है और कितना अच्छा हो रहा है, और मेरा जो कस्टमर है वो अच्छी तरह से समझ पा रहा है कि प्रोजेक्ट को नहीं. तो एक फीडबैक रेस्पॉन्स और ये जो मैकेनिज्म होना चाहिए था वो डेवलपर्स के पास अभी नहीं है. जो तीसरा सबसे पहलू हमने देखा कि क्रेडिबिलिटी ऑफ द ब्रांड इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आज की डेट में जिसकी डिलीवरी अच्छी थी, आज की डेट में जिसके प्रोडक्ट्स रेडी हैं और उन्होंने क्वालिटी वर्क किया है, और जिनके पास एक अच्छा वर्ड ऑफ माउथ है, जिनकी उनका एक ब्रांड ऑलरेडी एस्टैब्लिश है, दे आर एबल टू स्टिल टेक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर टू द अदर्स जिनके पास ये ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है. क्योंकि कस्टमर अब जब डिजिटल ऑपरेट कर रहा है और उसको इसी माहौल में सब डिसीजंस लेने हैं, तो वो श्योर होना चाहता है कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है और सही जगह जा रहा है कि नहीं. अब यहाँ पर से मैं जो पुराना क्वेश्चन है वहां पर थोड़ा आना चाहूंगा, वो श्योर कैसे हो सकता है. तो डेफिनेटली दे आर established name like Tata and Godrej into the market. They are big corporates. They will have a different kind of behavioral patterns. Customer अलग तरीके से उनके साथ बिहेव करते हैं, अलग ट्रस्ट. पर हमें ये जानना जरूरी है कि इस पूरे प्रोसेस में जहाँ पे ट्रस्ट आता है वहाँ पे चैनल पार्टनर्स का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है. तो जो चैनल पार्टनर्स ऑलरेडी जो कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, जो ऑलरेडी उनको ट्रस्ट करते हैं, वो उनसे जरूर कुछ ना कुछ बात करेंगे, उनसे जरूर इंटरेक्ट करेंगे, फीडबैक लेंगे. पर एट द सेम टाइम इस माहौल के अंदर चैनल पार्टनर्स को ये समझना जरूरी है कि वो केवल डिजिटल एक्टिविटीज और काम ही करना शुरू ना करें, तो उनको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा अपने खुद के इमेज को ऊपर वो करने के लिए, अपने खुद के इमेज को एक शेप देने के लिए. जैसा कि हम यूएस मार्केट्स में देखते हैं, मैच्योर्ड मार्केट्स में देखते हैं, बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस सिचुएशन हम लोग को इंडिया में भी ऐसा ही माहौल दिखेगा जहां पे यू गेव अ स्टेटमेंट कि 10% who are doing 90% of the business. Right. We got to understand this 90% of the business also is being done by this 10% as well. Correct. So बड़े ब्रोकर्स हैं, वो सब ब्रोकर्स के फॉर्म में जो इनको हम एजेंट्स कहते हैं, वो इन्हीं लोग के साथ काम करते हैं. तो these are the real foot workers, they are the real people who interact with customers. उनको नॉलेज अपने कैचमेंट एरियाज की बहुत ज्यादा है, कस्टमर्स के साथ एक 1-to-1 टच बेस है. तो जो मेरा जो मेन वो रहेगा, उनके हाथ में बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाला है कि जो कस्टमर्स उनसे फीडबैक कॉल्स लेता है, उनका फीडबैक मैटर करेगा. एट द सेम टाइम उनको खुद के अपने इमेज पे मेहनत करना पड़ेगा, डिजिटली प्रेजेंट रहने के साथ साथ. एट द सेम टाइम उनको खुद का वर्ड ऑफ माउथ अपने लिए और कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाए और वर्ड ऑफ माउथ अपनी तरफ खींच पाए. They will have to work a little harder on that front as well. And of course, उनको डेवलपर्स के साथ एंगेजमेंट करनी पड़ेगी. कुछ डेवलपर्स के साथ उनको अपना बिजनेस भी 70-30 रेशियो में चलाना पड़ेगा. 70% बिजनेस वहां करेंगे जहां पे उनको श्योर शॉट है कि डेवलपर के साथ उनके अच्छे रिलेशनशिप्स हैं,
उनके एफर्ट को वो डेवलपर्स मानते हैं और उनका पूरा ध्यान रखेंगे। क्योंकि EOI फॉर्मेट में मैंने एक क्वेश्चन देखा डैशबोर्ड पर कि EOI के बीच में ब्रोकरेज का क्या होगा। तो इन कमिंग टाइम्स आई बिलीव बहुत ज्यादा इनोवेशंस इन ब्रोकरेज सिस्टम इज आल्सो गोइंग टू कम। आई बिलीव ये टाइम ऐसा है जहाँ पे डेवलपर्स भी अपनी तरफ से कुछ पहल करेंगे, जिससे जो ब्रोकर्स उनके साथ अच्छी तरह पहले से काम करते रहे या बिजनेस को सिक्योर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो आपके रिलेशनशिप जो आपके डेवलपर्स के साथ है वो बहुत मायने रखेंगे। तो दैट्स द रीजन आई सेड 70-30 रेशियो में आप शायद काम करें। 70% जहाँ पे आपको श्योर शॉट है कि ये डेवलपर्स हमारा बेसिक नीड का रिक्वायरमेंट पूरा करेंगे, और 30% ऑन द रिस्क साइड जहाँ पे आपको लगता है यहाँ पे हमें वेलोसिटी मिल सकती है, यहाँ पे हमें काम करके दिखना चाहिए। तो आपको अपना पोर्टफोलियो इस तरह से डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। और जो ऑफकोर्स जो डेवलपर्स और ब्रोकर्स का जो रिलेशनशिप है वो और स्ट्रांग होगा, और तभी दोनों लोगों को सक्सेस मिल पाएगा। दिस इज व्हाट माय my take will be on this. Beautifully explained, Govind. Okay, one more important question is what kind of product level modification or innovations? We talked about a lot about innovations in sales and marketing, virtual content, e-brochures and videos and further content. Yeah. But as far as a product is concerned or a home is concerned, what kind of innovations or modifications we are looking at? Now we know that home is the only protection we have got from virus. Sanitization and hygiene have become an important aspect of life. So what kind of product level modification or innovations we are looking at? So see, this is a very big debate going on, not just in India. India में ये debate नहीं चल रहा है, globally ये सबसे बड़ा debate चल रहा है कि घरों के हिसाब से या commercial properties के हिसाब से, या इवन जो कस्टमर हमारे साथ साइट पर मिलने के लिए जब आते हैं, भले ही कम आ रहे होंगे साइट विजिट पे, वर्चुअल में काफी भी लोग मिलेंगे, तो नए चेंजेस क्या होंगे? तो आई बिलीव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडिया में भी टेक्नोलॉजी को लेके जो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, उसमें सबसे बड़ा चीज है कि व्हाट वी कॉल एज फिजिटल एक्सपीरियंसेस, व्हिच इज फिजिकल प्लस डिजिटल। हमारे घरों की प्लानिंग में शायद ऐसे एक्सपेरिमेंट्स आएंगे कि लिफ्ट्स को जब बटन दबाना है उसके बजाय साउंड के थ्रू या वॉइस कमांड के थ्रू लिफ्ट बुलाई जाएंगी। ऑन द प्लानिंग स्टेजेस itself, maybe this is the kind of innovation that can come. Minimum touch in the faces will be made, because ये वायरस ने एक चीज जरूर सिखाया है कि ये फ्लू का ही पार्ट है, फ्लू का ही एक पर्टिकुलर वर्जन है, बट फ्यूचर में ऐसा पॉसिबिलिटी है कि कोई भी वायरस टच से अगर फैल सकता है तो उसके हिसाब से प्लानिंग अब शुरू कर दी जाएगी, एंड वो प्रोडक्ट्स जो इस तरह से बनेंगे उनके एडवांटेजेस ज्यादा होंगे। तो आपके जो कॉमन एरियाज की जो फैसिलिटीज है, एवरीथिंग है, प्रोबेबली उसके अंदर ये प्लानिंग की जाएगी ऑलरेडी, और मे बी उनको सेल्फ हाइजीन मेंटेन करने के लिए जो उनको बेसिक प्रोटेक्शन मेंटेन करना है कि ऑटोमेटिकली they get sanitized, all the surfaces are getting sanitized. Those equipments will also be coming in. I was talking to one of the developers. He was already talking about it. He's operating in luxury space. He's already talking about that on his site. He's created the box gates where the moment the customers are entering, the whole sanitization will automatically happen with minimum sprinkles. So these kind of changes are definitely going to happen, और maybe घरों के planning के stages में भी ये सारी चीजें already देखी जाएंगी कि घरों societies में जब लोग enter कर रहे हैं तो already ये technology is in shape. And at the same time, when the brokers are bringing any customers on the site, the channel partners are bringing anyone on the site, at that point of time on the site experience level itself, maybe a lot of technology will be advanced जहाँ पे touch के ऊपर voice commands को और facilities को ज़्यादा वो push किया जाएगा। तो we will have a lot of people working on the back-end technology, और अगले 5 से 6 महीने में for sure इस तरह की technologies बाहर आएंगी। शायद डेवलपर्स उसको अडॉप्ट भी करेंगे और चैनल पार्टनर्स और ब्रोकर्स उसको शायद आगे प्रोपोगेट भी करेंगे, क्योंकि हाइजीन इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो हमारी सबसे बड़ी लर्निंग अभी हमने सीखी ये पूरे लास्ट 2 महीने में, वो हमारा हाइजीन है, और उसका ध्यान आई बिलीव सब लोग प्लानिंग स्टेजेस पे ही करना शुरू करेंगे। विजय, if you want to add up something. Covered points. Govind had rightly said that the innovations have started. Lift का बात जो उन्होंने अभी कहा, even I have heard from someone कि लिफ्ट वॉइस कमांड से चलेगी, मिनिमम टच पॉसिबल करेंगे लोग सब चीज़ों के लेकर। इवन योर डोर हैंडल्स वगैरह ये सब भी हैंडल्स निकाल दिए जाएंगे, दरवाजे पे नहीं होने चाहिए करके। यू विल हैव अ कार्ड लॉक्स वगैरह, वो सब चीज़ें भी चलेंगी करके। एंड बॉक्सेस एट दी ऑब्वियसली एट द इंटेंस लेवल फॉर अ सैनिटाइजेशन आप कर सकते हैं सैनिटाइजर्स के लिए। इसके अलावा तो आई वाज रीडिंग समवेयर चाइना हैज स्टार्टेड क्रिएटिंग व्हीकल आल्सो व्हिच इज कोरोना
Corona or something like that, they have created one vehicle की बुकिंग चालू, तो लोगों ने ऑलरेडी इनिशिएटिव लेना चालू कर दिया है इस तरीके से. तो इनोवेशंस आर डेफिनेटली गोइंग टू कम अप. अब थिंकिंग ये है कि मतलब देखना ये है कि किस तरीके से कैसे कैसे लोग आगे बढ़ते हैं इसको लेकर. Sudhir ji, I have a question for you. What kind of trend you see when it comes to bank schemes going forward, which will help support this kind of demand? So see, banks like we have been, banks has always been proactive. Like as I said, the bank has the most important part from the bank side has been to attract the customer, rather to get more client, apply for the loan. They have reduced the rate of interest. That is one big thing which is there. They have, also introduced the complete waiver of the processing fees. The client does not need to pay the processing fees to get the sanction. That is one step they have taken. The bank is also, we are in a nascent stage. In fact, we discussed this option. Vijay had mentioned that we are also thinking to bring back the subvention scheme, which is, of course, has been stopped by the RBI. Still, it is not happening. But then there is talks going on that there will be, the subvention scheme again will come back, so that gives a breather to the customers. And again, they can, like, if they're told they're buying in under construction property, they are sure that till the time the project gets completed, the interest part is taken care by the developer. That is one point which is there. So these are the options which is there, other than the technology which the bank is bringing in terms of speed, expediting the process. These are the steps which the bank has taken to do it. Yeah. Right. So beside that, there are schemes. Of course, we are offering a lot of schemes to the developer in terms of like 10-80-10 or the subvention scheme, which that is, of course, it is not there now, but flexi payment scheme, which is again offered to the developers. I'll come back to you, Sudhir ji, because I have a few more questions from bank and finance. But right now, a very important question coming up from the panelist. I would like to Vijay to start on this first is, what kind of demand, because we have seen how, slums have created a mayhem in the city. So how you see the SRA things coming up going forward? So if Vijay can throw some light on it. Obviously, government is going to put up more efforts to complete all those SRA projects which they have initiated. They are holding back it because of कुछ ना कुछ उनके rules and regulations changes की वजह से या कुछ ना कुछ और वजह से permissions की वजह से there are almost 80% of SRA projects which were sanctioned but did not took off. तो अब गवर्नमेंट इनिशिएट करना चाहेगी और वो सारे के सारे कंप्लीट भी करना चाहेगी जल्द से जल्द, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्लम्स कैन बी इरेडिकेटेड. बट ऑब्वियसली ना अब ये पेंडेमिक देखते हुए उनमें भी चेंजेस लाए जाएंगे, बिकॉज द वे द एसआरए बिल्डिंग्स बीन क्रिएटेड दे वर अनदर वर्टिकल स्लम्स ओनली. So they will put efforts to it कि अब वो प्लान्स को भी देखा जाए बाकायदा और सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को रखते हुए उसको डिजाइन किया जाए कि भाई वो इतना क्रैम्प भी नहीं हो, बिकॉज वी कैन सी सो मेनी इंसिडेंट्स हैज हैपेंड इन लास्ट 1 year आल्सो इन एसआरए बिल्डिंग व्हिच हैज बीन क्रिएटेड बाय डिफरेंट बिल्डर्स. कहीं आग लग गई, कहीं पे कुछ हो गया. द वे दे आर लिविंग वो वर्टिकल स्लम्स ही कहे जाते हैं. तो आगे देखा जाएगा, गवर्नमेंट भी उस पर ध्यान देगी कि वो वापस से एक वर्टिकल स्लम ना बने. तो वो चीजों पे भी शायद साइज ऑफ द फ्लैट्स में इंक्रीज और गवर्नमेंट उस पर भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे देगी. जैसे अभी 325 और 400 के आसपास कुछ है कि आप सम के बदले में इतना कैफेटेरिया दे सकते हैं करके, तो वो वापस से थोड़ा सा और बढ़ाया जा सकता है बाय लुकिंग एट द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन दैट फैमिली. दैट कैन बी इंक्रीज एंड डिपेंडेंस ऑब्वियसली. ये मेरा अपनी तरफ से एक व्यू पॉइंट था कि गवर्नमेंट शुड लुक इनटू इट कि उस जो घर उसको दिया जा रहा है, जिस भी बंदे को दिया जा रहा है, उस घर में कितने लोग रहने वाले हैं और कितने डिपेंडेंट है और कितने सेल्फ डिपेंडेंट है. तो अगर जितने डिपेंडेंट है, नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स के ऊपर उसकी साइज ऑफ द फ्लैट कैन बी डिसाइडेड. अब जस्ट ऐसे ही 325 स्क्वायर फीट में कोई एक ही आदमी रह रहा है, 325 स्क्वायर फीट में कहीं 20 लोग रह रहे हैं, सो दैट मेक्स अ कंजेशन आउट देयर. और वो फेयर भी नहीं है फिर आगे करना चाहते हैं उस तरीके से. So SRA में थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे और गवर्नमेंट will definitely put efforts to complete those projects as soon as possible to eradicate all these slums also in the Mumbai region.
Okay. एंड डेफिनेटली जब स्लम्स खाली होंगे तो लैंड भी अवेलेबल होगी, लैंड अवेलेबल होगी तो बिल्डर्स विल बी देयर टू कंस्ट्रक्ट दैट फर्दर. Nicely put. Nicely put. Yeah, Govind, I have something for you. There's a question which says, how technology, can help businesses overcome this pandemic, it's going forward, and what kind of investment, be it channel partners or the developers or all the intermediaries of the real estate per se, should be doing. So I believe शशि, हम लोगों ने ट्रेलर ऑलरेडी देख लिया है. Correct. Yes. जो लास्ट 2 महीने थे अगर वो ट्रेलर थे तो अब पिक्चर लॉकडाउन के बाद चालू होगी. हम लोग को ये समझ में आना चाहिए कि जैसा अभी कंडीशन है, लॉकडाउन के बाद भी ये पोजीशन रहेगी जहाँ पे शायद ऑफिस केवल 33% ऑपरेशन पे, एफिशिएंसी पे ही काम करेंगे. काफी लोग घर से ही काम कर रहे होंगे. तो जब घरों से काम चल ही रहा होगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शायद लोग घर से बाहर बहुत ना निकल रहे हो. तो जो हमारे चैनल पार्टनर्स का जो इंटरेक्शन है, लोग शायद घर से बाहर बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के लिए ही शायद निकलेंगे. तो सबसे पहले चैनल पार्टनर्स को समझना पड़ेगा कि उनकी टीम केवल अकेले वही नहीं, क्योंकि जितनी बड़ी टीम है, जितने ज्यादा लोगों को सिखा सकेंगे, यंग लोगों को बता सकेंगे कि वो लैपटॉप पे जाके, कॉल पे लोगों से बात करना एक चीज है, पर एक लैपटॉप पे जाके उनको ये वॉक थ्रूज करवा सके और प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी रख सके और तब उनको समझा सके कस्टमर को. तो इस तरह के लोग चाहिए होंगे और उस तरह की ट्रेनिंग भी उनको देनी पड़ेगी. तो सबसे बड़ा फंक्शनल चेंज जो हमारे चैनल पार्टनर्स के लिए होने वाला है वो ये होने वाला है कि कल आप केवल कॉल सेंटर्स को बेसिक स्क्रिप्ट्स दे रहे थे और उनको सिखा रहे थे कि आपको क्या बोलना है, और मे बी आप खुद बात कर रहे थे या सीनियर लोग बात कर रहे थे जब डिटेल डिस्कशन हो रहा था. बट नाउ पहले स्टेजेस पे ही जब भी वर्चुअल वॉक थ्रू या ऐसे डिस्कशंस हैं, आपको कॉन्फिडेंस के साथ बताना पड़ेगा प्रोजेक्ट के बारे में. एट द सेम टाइम आप जब पर्सनली मिलते हो तो आपके कुछ स्पार्क होते हैं, आपके कुछ तरीके होते हैं जिससे आप कस्टमर को इम्प्रेस करते हो, और वो जब आपके वो चार्म नहीं है आमने सामने में, तो वो सेम चीज आप कंप्यूटर पे कैसे कर सकोगे, कैसे उनके चेहरों पे स्माइल ला सकोगे और उनसे आधे घंटे और 45 मिनट्स अटेंशन उनका पा सकोगे. तो इसमें टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बी इंटरमीडिएटरी, पर आपको वही करना है जो आपका स्किल सेट है, पर उसको आपको रिफ्लेक्ट करना होगा इस कंप्यूटर के सामने. वो एक नया चीज आने वाला है जो बहुत आसान नहीं होता है, जितना मुझे पता है. इट विल टेक, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी मेहनत भी लगेगी, पर डेफिनेटली हो सकेगा. एंड एट द सेम टाइम अब आपको समझना जरूरी है कि केवल आप व्हाट्सएप करके या डिटेल्स भेज देते थे, वो एक तरीका है, पर अब आपको समझना जरूरी होगा कि कस्टमर कैसा सोच रहा है. बहुत लोग इस टाइम में कम्युनिकेशन इसी तरीके से कर रहे होंगे, तो आप अलग कैसे करने वाले हो, आप अलग कैसे लोगों तक पहुंचोगे. तो आपको ये सोचना जरूरी है कि अगर एक पर्टिकुलर कस्टमर को 10 लोग ऑलरेडी अप्रोच कर रहे हैं, 10 ब्रोकर ऑलरेडी अप्रोच कर रहे हैं, आप क्या अलग कर रहे हो, आप कौन से विंडो से उनको अप्रोच करते हो जो उनके लिए इनोवेटिव होगा, जो उनके लिए थोड़ा सा नया होगा, और जहां पे आपकी इंटीमेसी उनके साथ बढ़ सके, आपका जो तरीका है या आपका जो ऑनेस्टी है वो कैसे दिखा सकेंगे. तो आपको इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा कि आपका मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या व्हाट्सएप ही रहेगा या कुछ और भी रहेगा. एट द सेम टाइम आपको मैंने पहले जो बोला कि आपको अपने खुद के इमेज पे भी वर्क करना पड़ेगा. आपको लोगों को बताना होगा कि आप खड़े किस चीज के लिए हो, आप जाने क्यों जाते हो मार्केट में. आप इसलिए जाना चाहते हो मार्केट में क्योंकि आप इतने सालों से हो, आप इसलिए जाना चाहते हो क्योंकि आपने इतने डील किए हुए हैं. आपको एक अपना रियल जो सेल्फ है, आपका जो ट्रू प्रोजेक्शन हम लोग कहते हैं, वो लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा कस्टमर के इंटरेक्शंस के साथ, जिससे आपके ऊपर बिलीफ उनका बढ़ता रहे. और आपको जानना जरूरी है ये वर्ड ऑफ माउथ से ही फैलेगा, और ये फेज के अंदर वर्ड ऑफ माउथ इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट. एट द सेम टाइम आपको एक छोटा सा लास्ट उदाहरण मैं दूंगा कि किसी भी दिन सपोज हम लोग कोशिश करते, लास्ट 2 दिनों में मैंने ये वेबिनार्स के थ्रू, एमसीएचआई का एक प्लेटफॉर्म था उसके थ्रू, रियलिटी नेक्स्ट एक प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू, कल ईटी रियलिटी के साथ मेरा वो है. लास्ट 2 दिन के अंदर मैं कम से कम 2000 लोगों से कनेक्ट कर पाया हूँ इस माध्यम के थ्रू, जो नॉर्मल दिनों में शायद मुझे महीना लगता 2000 लोगों तक पहुंचने के लिए. करेक्ट. ये आपको जानना जरूरी है कि शायद ये अपॉर्चुनिटी भी है कि आप अपने कैचमेंट एरिया से बाहर भी अब निकल सकते हो, क्योंकि आपको ऐसा पॉसिबिलिटी भी है कि अगर आपके पास स्किल सेट अच्छे हैं, आपके कैश फ्लो थोड़े अच्छे हैं, ज्यादा लोगों को आपने रखा है, तो जरूरी नहीं है कि अगर आप बोरीवली में हो तो आप बोरीवली को ही एड्रेस करो. इंटरनेट का माध्यम ऐसा है, डिजिटल का माध्यम ऐसा है, जिसके थ्रू आप शायद आपका अगर 5 किलोमीटर का ऑपरेशन था पहले, अब आप 15 किलोमीटर को टारगेट कर सकते हो. एंड यू कैन थिंक बिग. सो माय थिंग इज, इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिफेंसिव, आप एक अटैकिंग प्लान में गेम में भी आप जा सकते हैं. वो आपकी चॉइस है, डिपेंडिंग अपॉन आपके पास कितना कैपिटल है, कितना कैश फ्लो है. और ये टाइम उनके लिए है, काफी बिजनेसेस में ऐसा टाइम है जिसमें आपको न्यूट्रल रहना है, डिफेंसिव खेलना है शायद. और रियल एस्टेट के लिए ये, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक ऐसा टाइम है जहाँ पे
जो फ्रंट फुट पे आकर एक अटैकिंग गेम खेल सकेगा, जिसके अंदर उतना कैपेसिटी होगा, उसको जरूर एक फायदा मिलेगा, चाहे वो डेवलपर होगा या चाहे वो चैनल पार्टनर हुआ या ब्रोकर हुआ, उनको जरूर एक फायदा मिलेगा। तो ये आपकी सोच होगी और आपका तरीका और आपका अपना खुद का गेम प्लान खुद डिवाइस करना है। बट अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। एक नॉर्मल बॉक्स से बाहर आके देखिए, एक नई चीज हमें समझ में आएगी और नई चीज दिखेगी। Well explained. Vijay, would you like to comment on this aspect? Hello, Vijay, can you hear me? Yeah. Yeah. So, would you like to touch upon this, Vijay? No, well covered points. I don't have anything to add on that. Okay. So, one important question from Mr. Shudesh. Can you hear me, Shudesh? Are you there? Yeah, I'm there. Okay. So I have an important question. Now, this is a question probably, all people who have either home loan going right now, or they are thinking of taking a home loan. Yeah. Is it advisable to avail moratorium benefits? I mean, there is a lot many things that EMI will increase or tenure will increase. So from a banker perspective, if you can let the audience know that moratorium avail karna, is it a beneficial or a good decision to go for, or because or yeah, so Shashi, moratorium again, it is definitely a good option given by the RBI. However, it all depends specifically on an individual basis, that how is this in terms of how is he covered in terms of paying the EMI, even if at all he or his business doesn't give him the entire good cash flow for the times to come, or other his employer, if he's a salaried, doesn't give him a proper salary on time. Because see, it's a very touchy subject, because the banks, it is when the bank is giving moratorium, it means that the bank interest is being charged on the amount which is due to the bank. It is very clear that the interest is not stopped. Correct. So the interest is added back to your amount, and definitely the client has to pay later, of course. And but then again, the interest is getting accrued. So definitely at the overall, at the end, definitely it is going to be interest which is going to be a little more the customer has to pay. But I would advocate to, of course, take it, go for a moratorium, because for the simple reason that today the salaried aspect or a self-employed aspect, both are in a situation wherein nobody is sure that what's going to happen. The salaried are not sure whether their job will remain with them or they will not, they will lose the job. The business people doesn't know where to go, whether they will probably get the entire good cash flow in times to come when the business will bounce back again to the normal one. So it is good that we should have a moratorium, and so that of course you can always, if at all you have the money, you can always prepay back to the bank, because there is always a prepayment penalty. There's no prepayment penalty. So you can, if at all you have covered the cash, you can again pay back to the bank entire sum, and you can reduce your interest. So it is a good strategy to go for a moratorium. And in fact, while we are talking, I think there will be there is an extension of moratorium happening. I was reading yesterday, RBI is going to come up with again a 3 months moratorium. So earlier it was till March, April, May, and now the June, July, August. I think this is 3 months again is going to be moratorium. So when the bank is considering such a step, giving to all the sector, including salaried, self-employed, and of course to the businesses, it is only keeping in mind the situation is not good. The cash flows are not coming up. So it is a wise decision to go for a moratorium. That's my I advocate. Beautifully explained, Shudeshi. Govind, I have a question has come up, which is like, how can channel partners sell virtually, and the role of messaging platforms, social media, etc., to acquire new clientele? If you can just touch upon this. Govind, can you hear me? Hello. Govind, am I audible? Yeah, Shashi, sorry, you lost. Okay. I lost you. Could you repeat the question? Yeah. So how can channel partner, leverage different messaging platforms, social media, etc., to acquire new leads, new businesses? If you can just touch upon this. Sure. So
टू बी वेरी ऑनेस्ट इसका जवाब बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आज की डेट में अवर थिंग इज कि आप लोग को पहले पता होना चाहिए कि आपके कम्युनिकेशन मोड्स क्या है। उससे इम्पोर्टेंट है जानना कि आपके पास कस्टमर का क्या कोऑर्डिनेट्स है, आपके पास फोन नंबर्स हैं, आपके पास ईमेल आईडीज है, कस्टमर्स के बारे में और क्या जानकारी आप लोग जान पाते हो। तो मेरा पहला एक सोल्यूशन आपके लिए होगा कि आप जो भी कस्टमर के साथ एंगेज कर रहे हो, आप मल्टीपल गूगल फॉर्म्स के थ्रू या डिफरेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू या आपके कन्वर्सेशन के टाइम पे ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर, कि कस्टमर आ कहाँ से रहा है, फैमिली में कितने लोग हैं, उनकी रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली क्या है। अगर आप ये शुरुआत से अगर जान रहे हैं तो मे बी आपके बाकी के कम्युनिकेशंस और स्मार्ट हो सकते हैं। अब उसको आप कैसे यूज करेंगे, तो पहला मैं शुरू करूंगा लीड जनरेशन से। तो आप ऑलरेडी जो यूज कर रहे हैं उसमें अगर आप हमारा सिंपल फॉर्मूला रहता है, अगर आप 50 लाख के नीचे की कोई इन्वेंट्री पे वर्क कर रहे हैं तो जस्ट फेसबुक पे आप फोकस कर सकते हैं और आपका काम आगे बढ़ सकता है। 40 lakhs to 80 lakhs 1 करोड़ के बिजनेस के प्रोस्पेक्ट है तो यू विल हैव टू गिव 20-30% लिवरेज अब तो टू गूगल प्लेटफॉर्म। 1 करोड़ के ऊपर अगर आप आ रहे हैं तो गूगल का एक्सपोजर और बढ़ना शुरू हो जाता है। आपका खुद का माइक्रो साइट अच्छी तरह से रहना चाहिए। माइक्रो साइट में सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों ने अच्छी टीम अगर रखी है या अच्छे वेबसाइट वाले बंदे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए देयर इज अ थिंग कॉल्ड रीमार्केटिंग। रीमार्केटिंग के अंदर एक बहुत बड़ा जो इवोल्यूशन फ्यूचर में देखा जा सकता है वो कस्टमाइज कम्युनिकेशन का है। तो जैसे आप मरीना एन्क्लेव के माइक्रो साइट पर आए जिसको आपने बनाया है एज अ ब्रोकर, और उसके ऊपर कोई कस्टमर आता है, अगर वो कस्टमर जब उस वेबसाइट से बाहर भी जाता है तो भी उसके ऊपर आप कम्युनिकेशंस कंटिन्यू कर सकते हैं। तो रीमार्केटिंग एज अ टूल, हाउ मच यू आर यूजिंग, आप कितना यूज कर रहे हैं वो आपको एक बार समझना पड़ेगा और यूज दैट remarketing as a tool to actually communicate better on like you know on face to face basis, on new offer basis every week on week. Now similarly हमारे नेटिव प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसको हम लोग कंटेंट के थ्रू मार्केट करते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट जो 1 करोड़ 1.25 करोड़ के ऊपर के ब्रैकेट में से चले के ऊपर जाते हैं वहाँ पे नेटिव प्लेटफॉर्म जिसको हम कहते हैं आउटब्रेन, तबूला, कोलंबिया, ये सारे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आपको यूज करना चाहिए to communicate about the project at the same time for yourself. Now a channel partner should understand this is not the only time जहाँ पे आपको attention पाना है कि आप ये प्राइस के ऊपर, बट एक इंटीमेट पॉलिसी के ऊपर भी, इंटीमेसी अपने बारे में बताते हुए भी, तो ये सारे कंटेंट बहुत मैटर करेंगे। तो जैसा आपने जो प्लेटफॉर्म के लिए कम्युनिकेशन के लिए बोला, देयर इज अदर थिंग कॉल्ड automation with regards to email marketing. How are you using your email marketing and how you are in continuously touch basing with your customer. तो suppose आपके पास कोई एक प्रोजेक्ट है, 4 प्रोजेक्ट्स है किसी एरिया में, आपको पता है ये कस्टमर किसी एक कैचमेंट एरिया के लिए तैयार है, तो आपके कैसे टेम्पलेट्स बैकग्राउंड में बने हुए हैं जिसमें कस्टमर्स को ऑटोमेटिकली एक उनके इन्फॉर्मेशन के ऊपर से कि उनका बजट क्या है, उनका स्पेसिफिकेशन क्या है, ऑटोमेटिकली आपकी तरफ से एक कम्युनिकेशन जा रहा है कि ये 4 से 5 ऑप्शंस हैं जो विजुअली आपको दिखा सके आप उसको घरों को, और आप उनसे इंगेज करिए ये बात करते हुए कि सर ये ऑप्शंस आप देख सकते हैं और हम आपकी मदद कर सकते हैं और शायद आपको बेस्ट ऑफर्स यहाँ पे दे सकते हैं। तो यूज दिस कम्युनिकेशन मीडियम इन द बेस्ट वे पॉसिबल। अगर आप 1 से 1.5 करोड़ के ऊपर के कस्टमर्स बेस को ट्राई कर रहे हैं, लिंक्डइन इज अ वेरी गुड मीडियम, यूज दैट ऑल्सो इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर इफ यू कैन डू इट स्मार्टली। अगर आप अफोर्डेबल को यूज कर रहे हैं तो ट्रस्ट मी हमने ट्रायल किए हैं, TikTok is turning out to be one of the very interesting medium. Now वहाँ पे आप अपनी तरह खुद का एक प्रोफाइल तैयार करके अपने स्मार्ट तरीके से you can communicate with them in that particular format. So these are the particular platform which are available, जिसको आप harness कर सकते हैं उनके true potential को और you can reach to your customer. But customer engagement is going to be a very important thing. उस केस में आप क्या करने वाले हैं नया, आप खुद के नए ऐप को प्रोपोगेट कर रहे हैं या खुद के कम्युनिकेशन चैनल को प्रोपोगेट कर रहे हैं, जो भी करिए विदाउट intruding into the privacy of customer is going to be the mantra. जहां पे भी आप ज्यादा पुश करेंगे कम्युनिकेशंस को, जहां पे भी आप ज्यादा डेस्परेट लगेंगे, शायद कस्टमर्स आपको नहीं उतना भाव दे सके। आपको कोशिश करना है कि आपको कम्युनिकेशन भी करना है, एंगेजमेंट भी करना है, पर एक दूरी मेंटेन करके, सो दैट उतना ही रेस्पेक्ट इस मार्केट में बढ़ेगा। आपको जानना जरूरी है इस मार्केट में एवरी कस्टमर विल बी गेटिंग अ लॉट मेनी कॉल्स, अ लॉट मेनी मैसेजेस। सो हाउ स्मार्ट यू आर डूइंग योर थिंग और किस तरह से आप स्मार्टली काम करेंगे वो बहुत मैटर करेगा। सो आई बिलीव दिस इज द फ्यू थिंग्स दैट यू कैन बी यूजिंग टू कनेक्ट विद योर कस्टमर्स इन अ स्मार्टर मैनर। Correct. Yes. Vijay, you want to add up something? Oh, well covered. We have to think new ways to do it because पैसा उतना ही है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है and right way में इस्तेमाल करना है so that I will get maximum leads out of that money which I'm spending on a Google or because digital platform पे बहुत सारी चीजें की जा सकती है जैसे गोविंद ने समझाई हैं। तो उसमें से हमको वाइजली चूज करना पड़ेगा कि हम पीजी क्या ढूंढ रहे हैं।
50 लाख का ढूंढ रहे हैं, 1 करोड़ का ढूंढ रहे हैं, 1.5 करोड़ का ढूंढ रहे हैं, 1.5 करोड़ का ढूंढ रहे हैं, तो द वे ही हैज एक्सप्लेन वेरी वेल कि आपको वो रीमार्केटिंग एंड देन ईमेल मार्केटिंग, देन यू हैव टू ट्रैक दोस कस्टमर्स वेरी वेल। तो उनको बार बार आपको बताते रहना पड़ेगा कि हाँ मैं आपको देख रहा हूँ, या आपको रीपुश करते रहना पड़ेगा प्रोडक्ट, तब जाके वो कहीं आपके किटी में आएगा वो। करेक्ट। So see, I forgot to answer, add one thing which I'll want to add. अगर चैनल पार्टनर्स अभी ना कर रहे हो इस चीज के लिए, तो किसी भी डेवलपर्स के साथ आपका अगर रिलेशनशिप अच्छा है, जो EOI के लिए आपको कुछ बेनिफिट अभी देने को तैयार है इस फेज में, तो आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा। जो भी हमारे पहले जो लीड्स के CPL, हम लोग जो कॉस्ट पर लीड बोलते थे, तो सपोज किसी प्रोजेक्ट के लिए वो 1000 रुपए था, तो आज की डेट में वो 50% to 70% नीचे हो गया है। यानी कि जो कोरोना वायरस का भी जो टाइम चल रहा है, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर, काफी सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं, उसके वजह से सारे कॉस्ट पर लीड या आपका डिजिटल मार्केटिंग का जो खर्चा है वो 50 to 70% रिडक्शन पे चल रहे हैं। तो एक तरह से अगर कोई भी डेवलपर आपको EOI के अंदर भी कोई बेनिफिट देना चाहे, तो ये एक अच्छा मौका है जहाँ पे आप कस्टमर की लीड इकट्ठा कर सकते हैं, उनसे एंगेज कर सकते हैं। अगर आपके पास प्लेटफॉर्म रेडी है, बात करने के लिए रेडी है लोग, और आपके पास वर्चुअल के लिए कोई प्लेटफॉर्म है, अब ये टाइम एक इस तरह का टाइम भी है जहाँ पे कम भाव में आप बिजनेस कर पाएंगे। यानी कि आप कल जो पैसा डालते थे और एक कस्टमर से इंटरेक्ट कर पाते थे, आज आप उसी पैसे में 3 कस्टमर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर कल आपका बजट 2 लाख था अगर डिजिटल के लिए महीने भर का, तो शायद आप 50,000 अगर आपकी कैपेसिटी आज है, तो आप सेम इम्पैक्ट पा सकते हैं। ये सारे डेवलपर्स के साथ ऑल ओवर इंडिया हो रहा है। तो अगर किसी को ये चीज नहीं मालूम, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू पुट इट, सो दैट ट्राई कुछ, कीप ट्राइंग few things, because you never know from where the next business is going to come to you. So you should experiment. Don't just sit idle. If you have the capacity, experiment a little bit. Well, nicely. I would like to add a few points to this. जो भी चैनल पार्टनर्स यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने कभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कोई मार्केटिंग किया नहीं है अभी तक, तो वो भी हमारी टीम के साथ टच बेस पे जा सकते हैं, एंड वी विल हेल्प देम टू क्रिएट देयर अकाउंट ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। Yeah. So I think nicely summed up, Govind. So guys, let me just run through how the webinar has progressed so far and what we have covered or not, and then probably we'll take the last few questions. So we have covered upon the demand side, we have covered upon the impact of the corona, we have covered upon the technology, the innovations we can talk about at the product or in the sales and marketing. So in a broad way, we have covered the most aspect of, what are the challenges overall the industry is facing, and we have covered most of the aspect. Now, there is only last 3 questions, which are very important ones. So I'll start putting those questions before signing off and thanking all of you. So the last of the 3 questions, I would like to continue with Mr. Shudesh, is do you think banks would come up with some kind of stimulus packages or support for a small medium businesses, like, say, for example, channel partners? Hello, is Mr. Yeah. Are you there? Yeah, I'm there. So shall I repeat the question? Yeah, please. I didn't understand the question. Okay. So what I'm trying to ask is, we have covered almost all the major aspect of the session. Now, one last thing, which from a banking perspective, I would like to understand, channel partners who represent small, medium enterprises. Do you think bank will come up with some kind of stimulus or package for them, or which can provide them some kind of relief going forward? See, the bank is definitely working on. There is on the MSME sector, and of course, be the SME sector, like the channel partners or like the channel partners. There is always there is always a scope for that, and currently also there are, government is also giving a lot of benefits to the MSME segment. There are schemes which is being offered by the central government, wherein the they can also take a working capital loan from the banks. It's basically unsecured loans they can apply, and that's a very nominal rate of interest they can apply. It's like a working capital loan if they wish to take it up. Generally, the working, if at all if your question is reference to their own working capital, of course they can avail loans from the banks, which is without the collateral.
and it's a very attractive rate of interest. Government is going to come up with something. I was reading yesterday only in the newspaper that there is some scheme again. Government is coming up, again reducing the rate of interest and giving some benefits to the small medium enterprises and small businesses. So definitely there is a scope. There is a scheme as of today also while we are talking, and of course there will be future one as well. Yes. So Vijay, I have the last question from you for today. So there are two aspects of the same question. First, it's a very big question. Are we expecting any price cut or any price reductions in real estate space? I think most of the channel partners is actually commenting, sir, 10 lakh discount hoga kya, 20 lakh discount hoga kya? So I wanted to understand, are we expecting any price cuts? See, the price reduction is ruled out. Everybody might have seen the articles also coming up on the newspapers or on the reports by JLL or other people who are reputed agencies. प्राइस कट डाउन तो नहीं हो रहा है कहीं पर भी, बट हाँ स्कीम्स वगैरह बहुत सारी जगह पे लॉन्च की जा रही हैं, जैसे कि सबवेंशन की थी, कुछ लोग 1 साल का EMI भर रहा है, कोई किसी का कोई कुछ और कर रहा है करके, डिपेंडिंग ऑन एन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट. जो रेट चार्ट चल रहा था वही रेट चार्ट पे आज भी बुकिंग हो रही है. हाँ, पेमेंट देने की सुविधाएं बढ़ा दी गई है. लोग जो 1 महीने में देने वाले थे वो अब 3 महीने में दे रहे हैं. When I come back to ये तो अंडर कंस्ट्रक्शन की बात हुई. बाकी RTMI के लिए अगर मैं बात करना चाहूँ तो RTMI में ऐसा कुछ भी नहीं है. RTMI प्रोडक्ट जो चल रहा था वैसे ही आज भी चल रहा है. स्कीम तभी भी थी और आज भी है. जो स्कीम्स पहले चल रही थी वो अभी भी चल रही हैं करके. तो सबका एक बेंचमार्क सेट है. उस बेंचमार्क के नीचे जा पाना हर बिल्डर के लिए मुश्किल होगा. तो प्राइस कट डाउन उससे ज्यादा तो मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि होगा, क्योंकि पीपल हैव ऑलरेडी रीच टू दैट बेंचमार्क. पहले से ही अगर आप देखेंगे डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसके बाद में रेरा, उसके बाद में ये, तो प्राइसेस हैव ऑलरेडी रीच टू दैट स्टेगनेंसी पार्ट. ना बढ़ी है ना घटी है. तो ये चलती आ रही है वैसी, और हर बार लोगों की एक्सपेक्टेशन वैसी रही थी कि भाई अब कम होगा, अब कम होगा. एंड आई एम सीइंग इट फ्रॉम लास्ट 2 years. कुछ कम नहीं हुआ है. पीपल आर जस्ट वेटिंग इट. Okay. Vijay, just as I said, there's 2 aspects in the question. One, since you are representing Guru Krupa Group, you've been working with them for a long time now. What are the offers and schemes you are currently have for the customer, for the channel partners at large? If you can quickly sum this up. Okay, so just to come back to Guru Krupa में मरीना इनक्लेव प्रोजेक्ट जो हमारा है, जो मलाड वेस्ट में है, जो it's a beautiful township. It's almost 10.5 acres of land where we have already constructed 10 buildings. We have given a possession to 10 buildings till now. There are 1,000 families staying there. बचे हुए 2 बिल्डिंग्स पे जिनकी हम बुकिंग ले रहे थे, K और L, उसमें हमने ऑफर्स रखे हुए हैं. लॉकडाउन के ड्यूरिंग हमने एक ऑफर रखा था कि भाई कोई डिसाइड करना चाहते हैं. सबसे ज्यादा बर्डन जो लोगों को लगता है वो है गवर्नमेंट टैक्सेस का. तो ये जो हमारे मरीना इनक्लेव में जो बिल्डिंग हम बेच रहे हैं, जिसमें 2 और 3 BHK के फ्लैट्स हैं, इनमें हम वो गवर्नमेंट टैक्सेस हमने वेव ऑफ किए हुए हैं. तो और हम रेडी पोजीशन ही बेचते हैं, तो गवर्नमेंट टैक्सेस में कुछ हमारी मेहनत भी रंग लाई है कि भाई हम रेडी पोजीशन बेचते हैं इसलिए GST नहीं लगता है. तो वो अल्टीमेट सेविंग हो जाती है किसी की भी. प्लस स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन जो गवर्नमेंट लेती है कस्टमर से, वो भी हम भर रहे हैं कस्टमर के बिहाफ में. तो इट्स अ टैक्स फ्री होम करके हमने उसको लाया है. तो जो कीमत कस्टमर को देनी पड़ती है वो सिर्फ फ्लैट की देनी पड़ती है उसको, यानी एग्रीमेंट वैल्यू ही भरना पड़ता है उसको. जो भी टैक्सेस ऊपर से लगने वाले हैं वो सारे टैक्सेस का बर्डन हम खुद ही झेल रहे हैं. एक तो हमने रिडीम कर दिया इसलिए हमने GST हमने भर लिया, जो अंडर कंस्ट्रक्शन में जो कुछ लगना था हो गया वो सब. प्लस स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन भी जो गवर्नमेंट अब लेगी कस्टमर से, वो भी हमने वेव ऑफ कर दिया है. वो हम भर रहे हैं कस्टमर के बिहाफ पे. और ऐसा नहीं है, नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि एग्रीमेंट वैल्यू कम कर देते हैं और स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन कस्टमर को भरने के लिए बोलते हैं. बट हमारे टीम में हम ऐसा नहीं करते हैं. वी रियली वांटेड टू हेल्प दोस कस्टमर्स. So we are taking that burden of stamp duty registration. We are paying on behalf of them. हम एग्रीमेंट वैल्यू कम नहीं कर रहे हैं, हम उनका स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन बाकायदा भर रहे हैं गवर्नमेंट. करेक्ट. उनके बिहाफ पे ये एक स्कीम हमने चलाई है. और लॉकडाउन के ड्यूरिंग कोई भी बुकिंग करता है तो उसको स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन प्लस GST जो बर्डन आने वाला था, GST तो बहरहाल नहीं आएगा उनको क्योंकि वो रेडी है. तो स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का जो बर्डन उनके ऊपर आने वाला था वो बर्डन बिल्डर विल टेक केयर ऑफ. एंड प्लस
वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, 18 मंथ्स का मेंटेनेंस भी हमने वेव ऑफ किया हुआ है. जो बर्डन होता है नॉर्मली किसी भी बड़ी सोसाइटी में कोई घर ले लेता है तो उसे ये भी बर्डन लगता है कि भाई आने वाले हर महीने मुझे यार मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा, मेंटेनेंस विल हैवी आउट. तो वो भी हमने उसके पॉकेट में शेयर किया. Okay, one more thing. If someone wants to book, how much money he need to shell out at present, and what is the brokerage ladder applicable to it? ब्रोकरेज लेटर का तो मैंने डिस्कशन ऑलरेडी ले लिया था कि हमारे पास जो चल रहा था वो 2.5 का था. हमने 0.25% का ब्रोकरेज लेटर में और इंक्रीमेंट दिया था उनको कि कोई भी बुक करता है तो 0.25% ओवर एंड अबव दी लेटर विच वी हैव शोन देम व्हाइल डूइंग अ लॉन्च ऑफ दोस PNL बिल. ये हमने किया था. और दूसरा सवाल क्या था? बुकिंग अमाउंट फिलहाल के लिए वी डोंट वांट टू कीप इन्वेस्टेड दोस कस्टमर्स बिकॉज वो लॉकडाउन के बाद शायद देखना भी चाहेंगे अपना घर को. तो हमने एक मिनिमल अमाउंट रखा है. 51,000 का बुकिंग अमाउंट कोई भी दे सकता है और हम उसका फ्लैट ब्लॉक कर देंगे. लॉकडाउन जब खत्म होगा उसके बाद में आके वो देख सकते हैं उस घर को और कंटिन्यू कर सकते हैं उस फ्लैट के साथ में. तो हम ज्यादा पैसा ना लेते हुए, नॉर्मली हमारा 5 लाख रुपीज टोकन अमाउंट है, लेकिन हम किसी का भी 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करके अपने पास नहीं रखना चाहते हैं. ये लॉकडाउन के पीरियड में हर किसी को लिक्विडिटी का प्रॉब्लम रहेगा. तो हमने सोचा कि इसमें से कम कितना किया जा सकता है. तो हमने 51,000 एकदम मिनिमल अमाउंट रखा है. और इसमें एक और हमने ये भी रखा है कि भाई जो 51,000 वो कस्टमर देगा और आने के बाद अगर वो लॉकडाउन के बाद जब वो आता है वो प्रॉपर्टी देखता है, अगर उसे वो पसंद नहीं आती या किसी कारणों की वजह से वो नहीं चाहता है कि वहाँ कंटिन्यू करे, तो वी विल रिफंड हिज 51,000 rupees. Got your point, Vijay. Govind, since you are the founder member of Insomaniacs, Blueprint, Realty NXT, would you like to highlight some of the key offerings you guys are doing, and probably the channel partners who are listening to us right now would probably like to reach you after this session? Sure. So yes, Shashi, I believe this week, as I told you, हम लोगों ने last 6 months से we started working out with few of the channel partners. We have been engaging so far on the with Xanadu's and few of those. But we realized after in this lockdown period that invariably the channel partners are going to need this support. And at the same time, going forward, we have always known that channel partner support is going to be a very, it's something that is not replaceable. उसको कोई replace नहीं कर सकता है. तो हम लोग इस Monday को ही, next week में mostly by Monday and Tuesday, we are announcing 2 new, verticals that we are launching. One is going to be called as the Premium Agent Club, and one is going to be called as Compass. So every, broker who is doing more than 5 to 8 lakh plus, business, they are they can apply for the Premium Agent Club, where we are going to be working jointly with them, helping them to get more, use our technologies that we have built, use our digital services as well. And we are operating in a different kind of a fashion where we are, giving them all the leverage of cash flows and all. There's a very unique medium, that we are launching. But at the second side, the Compass is going to be a very formal, very simple this thing. A new team is being created where at a very low rate, someone who's just having a 1 team or 2 team members, and they want to use our technologies. We are creating a new package for them, where in the this year we are expecting in the Premium Agent Club we will be starting with 10 developers, and in the Compass we will be 10 brokers. And in Compass vertical of ours, we are starting with 50 brokers to assist them, to help them to use our technology, to help them do more selling with the real estate developers. So both of the verticals are going to be very interesting, and I'm very positive that in coming times, this is the kind of requirement that the brokers will need, and we wanted to be the one present for them. So right from helping you with the technology with regards to virtual walkthrough, with regards to helping you with a presentation that you want to make, all of it, those kind of assistance with over 130 people, team members, which have been working only on real estate. There's a separate team which is being created to assist the brokers in the coming times. Wow, great initiative, Govind. Great initiative. I think this will surely help a lot many channel partners. Now, the last question for the session from all the 3 panelists is your forecast of year 2020. So I'll start with Shudesh, we'll go to Govind, and then we'll end up with Vijay. So Shudesh, what do you forecast for year 2020? This is the last question, I'm again repeating, last question of the webinar. So if you can just elaborate on this. Yeah, so Shashi, I guess the forecast is to be very positive. In fact,
all of us has to be very positive. I am very situation definitely we will come out of as a winner only. The situation will change, and of course we'll be rocking as we used to be, and definitely they'll be much better than what it was earlier, because of the situation, whatever the circumstances has been created. The government is supporting, the rates has been going down. Specifically, if we talk about the banking loan piece, the rates going down, bank being more liberal in terms of offering the loans, the customer coming in again looking at their current houses they want to move and acquire bigger houses, or so there will be supply, there will be, it will be supported by the bank. So I am very positive that definitely once we come out of this, the situation definitely will be better. Yes. Right. Govind, if you'd like to, your assessment of year 2020 and forecast, please. So I will summarize the 2020 and 2021 financial year, right, which is till the March. So I'm pretty sure my only suggestion would be, whatever cash flow that you have, manage it smartly. Every penny is going to be important. Don't waste it anywhere else. The next one quarter for sure is going to be difficult on the recovery part. But business part is going to be very aggressive. You will have to give some leverage. आपको कुछ leverage देना पड़ेगा recovery के लिए, customers के हिसाब से, brokerage के हिसाब से, developers के हिसाब से. but आप business अच्छा कर सकते हैं इस time में. आपको बस ये 3 महीने और अच्छी तरह से प्लान करके रखना पड़ेगा. बट रिकवरी बाय द टाइम द मार्च फाइनेंशियल ईयर इज गोइंग टू एंड, जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा तब तक आपके पास, आई एम प्रीटी श्योर, जो अगर आपकी पॉसिबिलिटी है, अगर आप अटैक मोड में खेलने को तैयार हैं, आपके पास थोड़े बहुत भी कैश रिजर्व हैं, तो आई कैन प्रॉमिस यू दिस इज दैट टाइम वेयर अगर इफ यू आर डूइंग एक्स, you can actually do 1.5x to 2x business. I'm talking about 40-50% minimum growth in this phase if you're playing it smartly, adapting to technology smartly. Just one lesson, जितनी फास्ट आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेंगे, उतनी ही फास्ट इस बिजनेस में अपने आप को कंसोलिडेट कर पाएंगे. आप किसी भी बिजनेस ट्रेंड्स को अगर आप ऑब्जर्व करें या किसी भी इंडस्ट्री को ऑब्जर्व करें, whichever companies have adopted technology quickest, बड़ी सी बड़ी IBM भी थी, IBM ने टेक्नोलॉजी में थोड़ी देर मात खाई और उसको एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट ने गिरा दिया. तो कोई भी बड़ा नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है, ये ऐसा माहौल है. तो कोई जो छोटा था वो कल बड़ा हो सकता है, जो कल बड़ा था वो स्टैग्नेंट हो सकता है. तो दिस इज अ टाइम वेयर आपको पुश करना ही पड़ेगा, खुद को नई चीजें सीखनी ही पड़ेंगी, और मौका है, उसको अच्छी तरह से आप एंजॉय कीजिए और अच्छी तरह से बिजनेस को पुश करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि फॉर श्योर बाय मार्च एंड बिजनेस विल थ्राइव, बिजनेस आगे बढ़ेगा. उसका आप कितना हिस्सा बटोर सकते हैं खुद के लिए, ये हम लोग के हाथ में, सबके लिए अपने अपनी एक चॉइस है. तो लेट्स मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट. Thanks Govind. Vijay, your assessment and forecast. Okay. Forecast, I would say I am ready to have a bigger business coming ahead. Real estate will bounce back. जैसा कि सुदेश ने बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो चुके हैं ऑलरेडी. There are two aspects for a buyer actually. एक रेट ऑफ इंटरेस्ट था और एक जरूरत का पैदा होना था. जरूरत पेंडेमिक ने पैदा कर दी है लोगों के बीच में कि भाई घर अपना खुद का होना चाहिए. होम लोन ने उसमें और थोड़ा सा फायदा करा दिया है कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो चुके हैं, गवर्नमेंट इज हेल्पिंग देम ऑल वे. तो ये सारे रीजन एक ही तरफ को दर्शाते हैं कि आने वाला बिजनेस बहुत जबरदस्त होने वाला है. और बी रेडी फॉर इट, बी रेडी फॉर encashing all those opportunities which you are going to get. Govind said very rightly, you have to use those technologies because कोई भी तुम्हारे घर तक नहीं आने वाला है, तुमको उसको हवा में पकड़ना. There are buyers in the market. वो जो तैयार हो रहे हैं और जो अभी हैं, उन सबको अगर आपको इनकैश करना है तो you have to use your technology to the best. ठीक है. So adaptation is the new way. Adaptation नहीं होगा तो आप पैरिश हो जाओगे. Adaptation होना बहुत जरूरी है. So adaptation real estate कर रहा है. They have started initiating all the efforts they are putting towards digitalization. That's the reason they are getting a sale. और जो इस पूरी दौड़ में शामिल होगा या आगे तक जाएगा, वही आदमी आगे जाकर इनकैश करने वाला है. For me, there is a future business coming ahead. और बहुत धंधा होने वाला है, बहुत मार्केट में लीड्स आने वाली है, और मैं तैयार हूँ इसके लिए. So let's encash it. I would say that. So I would like to thank all of you, and it's a very positive. We are going to end on a very positive note. There is a key takeaway for all the participants. First of all, thanks to all the participants for joining in and listening to our panelists. Most importantly, as rightly summed up by all the three panelists, is we are surely bounce back. We are going to bounce back, and this time
it will be much more stronger with advent of technology and support of it. The probability to do more business will be within your reach, and you guys will definitely have greener pastures going forward. It's time right now to look within, improvise on the existing support, infra, team, technology, whatever you are having, and try and overcome this crisis. So I would like to thank all the panelists. Thanks, Vijay. Thanks, Govind, Shudeshi. Thank you, Shashi. Thank you for having us. Thank you so much. Absolutely. You did a wonderful job moderating the whole session. Thank you so much. Thank you so much. Thanks, Yes. Okay, yeah. okay. So let's Thank end this. Thanks all the participants. We'll try and catch up soon on some other panel and on some other topic. Thanks for. Okay. Thank you so much. Thank you for all the participants. Thank you. Thank you so much. Thank you. Bye.